قسط نمبر 19۔ عزت کی آنکھیں غصے اور شک کے لاوے سے ابل رہی تھیں۔ کون آیا تھا یہاں میری غیر موجودگی میں؟ رابعہ کی سانسیں اس کے حلق میں جا اٹکے۔ عزت کے ایک ہاتھ میں رابعہ کے ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں اپنی پینٹ کا بیلٹ تھا۔ غصے میں عزت بالکل پاگل ہو جاتا تھا، خود پر کنٹرول کرنا ناممکن تھا اس کے لیے۔ محض ایک شک کی بنا پر وہ رابعہ کی بات سنے بغیر وہ اس پر برس پڑا۔ پہلے اس کے منہ پر تمانچے مارے، پھر اسے بیلٹ سے مار کر اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی، نہ اپنی صفائی میں نہ اپنی تکلیف پر۔ آفس جاتے ہی سب اس کی خیریت پوچھنے لگے تو وہ چڑھ کر بولا، کیا ایوا ہے مجھے جو تم سب ایک ایک کر کے میرا حال پوچھ رہی ہو؟ ریاض صاحب جو آفس میں سب سے سویر تھے وہ بولے، اس بیٹا کل پارٹی میں کسی نے آپ کو ڈرنک پلا دی تھی، آپ کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، میں اور اکبر آپ کو گھر چھوڑنے گئی تھے۔ ریاض کی بات سن کر عزت کے ایوش اڑے، کانالف مجھے ڈرنک دی تھی کسی نے؟ ریاض بولے، جی بیٹا آپ کو ہماری بہو بیٹی نے نہیں بتایا۔ عزت کے ہاتھ سے فال چھوٹ کر زمین پر گری۔ وہ بہت اپ سیٹ ہو گیا اور جلدی سے آفس سے گھر کی طرف نکلا۔ راستے میں اسود کا فون آیا، کیسا ہے یار؟ تو اب کچھ بہتر ہے طبیعت تیری؟ عزت نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ میری طبیعت خراب تھی؟ جواب میں اسود بولا، یار رات کو بھابھی کی کال آئی تھی، کافی طبیعت خراب تھی تیری ڈرنک کی وجہ سے، انجیکشن لگا کر بھابھی کو تسلی دے کر گھر آیا تھا کیونکہ وہ بہت پریشان تھی تیری حالت دیکھ کر۔ عزت بولا، ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں۔ فون کاٹ کر وہ جلدی سے گھر پہنچا۔ رابعہ وہیں فرش پر نڈھال پڑی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے رابعہ کو بیڈ پر لٹایا تو اس کی حالت عزت سے خود بھی نہ دیکھی گئی۔ اس نے اسود کو گھر بلایا۔ اسود بھی اس کی حالت دیکھ کاف حیرت زدہ ایوا، اور پھر جو عزت پر وہ برسا، شرم نہیں آتی تجھے؟ کیا سمجھ کر مارا تو نے اسے؟ لاوارث ہے یہ، گونگی بہری بنی رہتی ہے، تیرے آگے اصلی اس کے ساتھ تو جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے۔ حالت دیکھ اس کی، سیدھا جیل جانے کی تیاری کر، اب وہیں تیرا جنون ٹھکانے لگے گا۔ عزت نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ تو نے مارا کیوں؟ اس کو وجہ تو بتا مجھے۔ اسود اس پر بری طرح سوار تھا، کیا کہتا سر جھکائے چپ رہا۔ اسود نے ایک نظر پھر ڈالی اس پر، پھر عزت کا منہ جبڑوں سے پکڑ کر رابعہ کی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پہ اپنے نشے کے نشان خود ہی چھوڑ کر پھر تو نے اس پر شک بھی کیا۔ اسود بہت غصے میں تھا، لعنت ہے تیرے مرد ہونے پر، اتنا بھی اعتماد نہیں تجھے اس پر، اول درجے کا جاہل انسان ہے تو۔ عزت شرمندگی سے بولا، بس کر یار غلطی ہوگ مجھ سے، اس نے کچھ بتایا بھی تو نہیں، تو نے اسے بتانے دیا ہوتا تب وہ بیچاری بولتی۔ بس کر یار اب دیکھ اس کو کیسے ٹریٹ کرے۔ اسود نے رابعہ کو چیک کیا اور ہاسپٹل جا کر سارا سامان لے کر آیا۔ اسے اب نیند کا انجیکشن دیا ہے، وہ بھی اس کنڈیشن میں جب اس کا ایوش میں آنا ضروری تھا، لیکن یہ ان زخموں کی تکلیف نہیں سہ سکے گی۔ اب لے یہ سارا سامان اور کر اس کی مرہم پٹی، اور یاد رکھنا اگر اگلی بار کچھ ایسا جنگلی پن کیا تو نے اس معصوم کے ساتھ تو میں نے اسے پاکستان بھیج دینا ہے اور تجھے سیدھا جیل۔ عزت اس کا غصہ دیکھ کر بولا، یار ایسی باتیں تو نہ کر، تو میرا دوست ہے یا دشمن؟ دوست ہوں اصلی سمجھا رہا ہوں، تو بھی اس کا دشمن نہ بن، اگر اسے اپنا ہی لیا ہے نہ تو پھر دل و جان سے قبول کر، تیرے نکاح میں تیرے رحم و کرم پر ہے، یہ انسان بن حیوان نہ بن۔ اسود باہر جا کر بیٹھ گیا۔ عزت نے جب اس کی شرٹ اوپر کی تو اس کے جسم پڑے نیل کے نشان وہ دیکھ نہ سکا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے فوراً اس پر کمبل واپس ڈالا اور خود کو نہایت پشیمانی سے کوسنے لگا۔ کیا ایوا اب کیوں برداشت نہیں ہو رہی اب مجھ سے اس کے زخم؟ میری ہی عنایت ہے نا، تو اب پچھتانے کا کافا دے۔ جو حالت میں نیکی ہے اس کی وہ دیکھ کر میری برداشت سے باہر ہے تو اس نے کیسے سہا ہوگا۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا ایوا؟ اسود اسے باہر آتا دیکھ کر بولا۔
यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं देख सकता इसके वो जख्म देने की बड़ी सकत थी। तेरे अंदर इस वक्त मर्दांगी का भूत सवार था, ना अब इंसानियत का रूप धार और कर इसकी कर अब। इज्द वापस अंदर गया। इसके आंखों में आंसू इगराबा के निशान देखकर क्या क्या है मैंने इसके साथ, इतना गुस्सा, इतनी हैवानियत क्यों ही मेरे अंदर। वो बहुत ज्यादा परेशान था राबा की यह हालत देखकर। राबा उठी तो जाजुब के बिस्तर पर थी, उठकर बैठी तो दर्द की टीसें उठीं। इज्द किचन में था। वो ये सित्ता चल कर बाहर तुम क्यों उठी बिस्तर से? वो इज्द को देखने लगी। बैठूं यहां आराम से, कली में बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे तुम पर उस तरह हाथ नहीं उठाना चाहा था, तुमने भी नहीं बताया। वो दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करते एवी बोली, मेरे बताए पर आप यकीन कर लेते। इज्द की निगाहें झक गई। जा आराम करो और ये दवा भी ले लो। इज्द ने उसको टेबल पर पड़ी मेडिसिन दी। मैं कुछ खाने को लाता हूं। उसने इज्द के हाथ से मेडिसिन लेकर वापस रखें। मुझे इनकी जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं? दर्द हो रहा होगा तुम्हें। राबा की आंखों से आंसू टपके। अगर ये लें तो उनसे मेरा दर्द और बढ़ जाएगा। इज्द ने हैरानी से इसे देखा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जख्मों पर दर्द सहने की आदत है, मरहम आ दवा की नहीं। वो इज्द को हैरान छोड़कर किचन में, तुम जा कमरे में अपने में बाहर से लिया निगाह खाना। राबा अपना दर्द अब समेटे चल दी। इज्द इसका दरवाजा नाक करके अंदर आया और खाने की डिश बेड पर उसके पास रखी। खाना खा लेना और ये दवा भी। राबा का दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने को। वो यूं ही अपने रब से बातें करते करते सो गई। इज्द उसे देखने के लिए आया। खाना वैसा का वैसा ही पड़ा था। उसने राबा को जगाया। राबा उठो, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? भूख नहीं लगती तुम्हें? वो अपने लिए फिक्रमंद होते इज्द को देखने लगी। खाना के जल्दी से मैं दोबारा गर्म कर लाता हूं। नहीं रहने दे, मुझे भूख नहीं अभी। इतना भूखा कैसे रख लेती हो खुद को? वो मुस्कुरा, मेरे लिए ये कोई बात नहीं। हर जुल्म, ज्यादती, भूख प्यास बर्दाश्त कर लेती हूं मैं। बचपन से ये सब सहने की आदत है मुझे। हालात बदल भी जाए लेकिन पुरानी आदतें कहां बदलती हैं। इज्द ने इसकी आंखों में झांका। जहां सदियों का दर्द इसकी आंखों के तैरते एवी पानी में था। इज्द को लगा इसका दिल किसी ने मुट्ठियों में भींच लिया हो। एक पल इसका दिल चाहा वो उसे अपनी बाहों में ले ले और चरा ले इसकी आंखों से ये शिकवे, ये दर्द, ये कर्बनाक आंसू। लेकिन वो सिर्फ सोच सका। जाजुब नरगिस के पास था। नरगिस कुछ बेहतर थी पहले से। हल्का सा बाजू फ्रैक्चर एवा था और सर फटने से 4 टांके थे। जियान आरिफ के घर निमल के ही पास था। जाजुब नरगिस को डिस्चार्ज करके घर लाया। मिसेस आरिफ मोमिल सभी आसपास से पूछने पर निमल न आई। नरगिस ने इसका पूछा, वो तब भी न आए। लेकिन जियान को मुसलसल इसी ने संभाल रखा था। वो सामना नहीं कर सकती थी नरगिस का कि इसने बहुत गलत सोचा था इनके बारे में। दसरा वो जाजुब का सामना भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे देखकर उसे वो सारी जिल्लत, वो सारी रुसवायां, वो अपनी बेबसी याद आ जाती थी। जाजुब की आंखें मुसलसल इसकी मुंतजर थीं लेकिन वो इंतजार ही करता रह गया। असवद ने अगली शाम चक्कर लगाया इज्द के घर। उसने बाजूहे से राबा के जख्म चेक की। ये तो अभी भी वैसे ही है यार, दी मैंने मेडिसिन, ये नहीं ले रही। खुद समझे उसे। भाभी ये क्या बात है? ये जख्म उस तरह नहीं जाएंगे, इनका दर्द कैसे बर्दाश्त कर रही है अब? उसने नजरें झुका ले। दर्द अक्सर मुझे अपनी बर्दाश्त के इस पार ले जाता है जहां किसी और कली बर्दाश्त करने के मकाम पर मर जाना आसान होगा। मैं दर्द की इस हद से भी गुजर चुकी हूं। असवद ने इज्द की तरफ देखा और उठ खड़ा। एवा, चल मेरे साथ बाहर। वो दोनों बाहर चलेगी। यार कभी तो इसके मकाम पर खुद को खड़ा रख सकता है जहां वो लफ्जों की, लहजों की, रवैयों की बर्छियां खाकर भी एक दीवार की मानिंद खड़ी है, सिर्फ एक आस, एक उम्मीद पर कि इसकी जिंदगी भी कभी इस पर आसान होगी। इज्द उसे देखने लगा।
यार इतना बदगुमाना हो कि कल को तेरी बदगुमानी इसके लिए कफन और तेरे लिए नाकाबिल मुआफी सजा बन जाए। इज़्द अब्रू उचक्का कर बोला, बस यार उस वक्त मुझसे बर्दाश्त नहीं है वाक़ई। यार तो इतना नैरो माइंडेड कब से हो गया है? ये शक, ये जालत, ये मार पेट, ये नफरत, ये जुल्म, ये सब कैसे आ गया तेरे अंदर? इज़्द अपने होनट दांतों तले चबाकर बोला, नहीं मालूम यार, बस उसे देखता हूं तो उम्मी की वो शक भरी निगाह, अपने गाल पर पड़ने वाले तमांचे नहीं भूलते। असवद इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, तो क्या मेरे यार, तो इसका बदला इससे सारी उम्र लीगा। इज़्द की आंखों में आंसू थे। यार बात सिर्फ माँ की नहीं, मेरा दिल, मेरा दिमाग इस बात को कबूल नहीं करता कि ये मुझसे पहले किसी और के हाथों इस्तेमाल हो चुकी है, और यार माँ भी बन गई है किसी और के बच्चे की। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? जब ये सब मालूम था तो शादी क्यों की फिर तूने? अब कर ली है तो कबूल बेशक न कर, पर उस तरह जुल्म न कर उसके साथ। क्या पता वो सच्ची साबित हो जाए और तेरे शकूक छूटे। इज़्द परेशानी से अपने बाल नोचने लगा। अच्छा चल, परेशान ना हो, छोड़ उन सब बातों को, अपने इन जख्मों पर मरहम लगाने का सोच जो तूने उसे दी है। यार नहीं मान रही वो मेरी, तो फोर्स कर उसे। ऐसा रिश्ता नहीं इसका और मेरा कि मैं फोर्स करूं। अनसट जबरदस्ती भी नहीं कर सकता उसे, और तकलीफ होगी, और वो डर भी जाती है मुझसे बहुत। असवद गहरी सांस लेकर बोला, चल ठीक है फिर, मैं इसे गहरी नींद का इंजेक्शन लगा देता हूं तो देख लेना फिर, वरना जख्म खराब भी हो सकता है, गर्मी का मौसम है। इज़्द बोला, कितनी बार करना होगा ऐसा? असवद बोला, 3 से 4 बार। ठीक है। आरिफ की वालिदा का इंतकाल हो गया था। आरिफ पाकिस्तान और 10 दिन में वापस भी लौट गई। सभी दादी के चले जाने से बहुत उदास थे। मिसेज आरिफ और मोमिल घर में नहीं थीं। मिमल लानिज में बैठी गहरी सोच में गुम थी। अचानक इसकी आंखों पर आकर किसी ने हाथ रखा। हाथ रखने वाले के हाथ छूते ही वो उछल पड़ी। बाब अजानी आप। वो उनसे लिपट कर रोने लगी। हाफिज साहिब ने इसका माथा चूमा। मेरी जान कैसी है? वो नाराज होने लगी। बाबा जानी, आपने मुझे बताया भी नहीं, अचानक से सरपराज देना था तुम्हें, पहले बता देता तो ये खुशी कैसे देखता अपनी शहजादी के चेहरे पर। वो बाबा को अपने कमरे में ले गई और ढेर सा बातें करने लगी बाबा से। वो घंटों इसकी बातें सुनते रही, फिर बोले, कुछ खाने का भी पूछोगी या बस बातों से ही मेरा पेट भरोगी? वो अपने माथे पर हाथ मारकर बोली, भूल गई बाबा, बस अभी आप थोड़ा सब्र कर ले। मोमिल और मिसेज आरिफ अभी तक नहीं थी। वो खाना बनाने लग गए। नरगिस अब कुछ बेहतर हो गई थी। जाजुब चाय पी रहा था। वो इसके पास आकर बैठी। जाजुब बेटा, अब लूट ही हो मेरे पास तो मेरी एक और बात भी मान लो। जी बोले। बेटा तुम भी अपना घर अब आबाद कर लो। इज़्द तुमसे छोटा है और शादीशुदा है, तुम भी कुछ सोचो। अब तो तुमने अपना नया कारोबार भी शुरू कर लिया है। इज़्द लूट कर आया तो तुम्हारा बसा बसाया घर देखकर वो तुम्हें जल्द ही कबूल भी कर लेगा। लोनिगा शादी भी आप फिक्र ना करें। अर्ज आ रही है कुछ दिनों में पाकिस्तान। तुम्हारी बचपन की साथी है, तुम्हें पसंद भी करती है। कहो तो मैं करूं शादी की बात। जाजुब अर्ज का सुनकर गहरी सांस लेकर बोला, नहीं उम्मी, अभी नहीं, मुझे कुछ वक्त दें सोचने के लिए। लो भला, अर्ज के साथ वक्त गुजार कर तुम 30 साल के होगी हो, अब भी तुम्हें वक्त की जरूरत है। कितना वक्त तुम पहले ही बर्बाद कर चुके हो। उम्मी मुझे को और पसंद है। नरगिस ने हैरत से इसे देखा। कौन है वो? बस है को जल्द मलवानीगा आपसे। नरगिस को कुछ समझ कि वो शायद निमल को पसंद करने लगा है। असली निमल ने जाजुब के आते ही यहां से कदम खींच लिए। निमल आपी, निमल आपी। मोमिल की आवाज पर वो बाबा के रोम से बाहर आई। क्या एवा? जियान रो रहा है बहुत, इसे संभालें आप। आंटी आ रही है थोड़ी देर में। वो जियान को लिए बाबा के पास आई। हाफिज साहिब ने उसे गोद लिया। अच्छा तो ये है जियान जिससे तुमने खूब दिल लगा रखा है? जी बाबा, बहुत प्यारा बच्चा है माशाअल्लाह।
निमल बेटा एक बात कहनी है तुमसे। जी बोले बाबा। बेटा मैं चाहता हूं मेरे जीते जी तुम अपने घर की हो जा। बाबा मैं अब से अलग नहीं हो सकती कभी भी। बेटियां माँ बाप के घरों में आबाद नहीं रहती। माँ बाप कली वो परा अमानत होती है। इस अमानत को जितना जल्दी हो सके अमानतदार के हाथ में दे देना चाहे। वो मुंह बनाकर बोली, क्यों बाबा बेटियां बोझ होती है? अरे नहीं मेरी जान, बेटियां बोझ नहीं है। बेटियों की शादी करना हर माँ बाप का फर्ज होता है और फर्ज में कज़ा अच्छी नहीं। क्या पता कितनी जिंदगी है मेरी, तमेरी पीछे तो को आसरा भी नहीं। सवा मेरे मैं ना रहा तो बस करे बाबा जानी ऐसी बातें ना करे। ठीक है लेकिन मेरी बात पर गौर करना। मेरे पास एक दो अच्छी फैमिली के लोग हैं, लड़के भी मेरे देखे भाले हैं। जो तुम्हारी पसंद होगी वही मेरी। निमल बेटा मैं मोमिल के स्कूल जा रही हूँ। जियान मेरे कमरे में सो रहा है, इसका जरा ख्याल रखना। वो हाँ में सर हिलाती जियान के पास चली गई। हाफिज साहिब सोकर जागे तो इनका दिल कुछ घबरा रहा था। वो नीचे लानिज में आकर बैठे। मोमिल मोमिल निमल कहाँ हो सब? नरगिस इनको आवाज लगाती अंदर एक। हाफिज साहिब ने पलटकर नरगिस को देखा। जियान को अटेई निमल सीढ़ियां उतरने लगी तो लानिज में खड़ी नरगिस के कदमों में झुके अपने बाप को देखकर ठिठर गई। वो नरगिस के कदमों में बैठे मुआफी मांग रही थे। मुझे मुआफ कर दो नरगिस, मुआफ कर दो। क्या कर रही है आप? उठी, किसी ने देख लिया तो? वो बच्चों की तरह बिलक कर रोया, मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम जब तक मुझे मुआफ नहीं करोगी मैं तमेरी कदमों से नहीं उठोनेगा। नरगिस भी रोने लगी। इन दोनों का ये अजीब मंजर देखकर निमल वहीं पत्थर का बुत बनी खड़ी रही। आप उठी तो सही। नरगिस ने झककर हाफिज साहिब को ऊपर उठाया। वो हाथ जोड़े भी इसके सामने गिड़गिड़ा रही थे। मुझे मुआफ कर दो। नरगिस ने इनके हाथ पकड़े। निमल मेरी बेटी है। हाफिज साहिब ने हाँ में सर हिलाया। निमल जियान को लिए ये बात सुनकर वहीं सीढ़ी पर धप से बैठ गई। जियान रोने लगा। नरगिस और हाफिज साहिब ने एक साथ निमल को देखा। हाफिज साहिब ने आगे बढ़कर जियान को गोद में लिया और निमल का हाथ पकड़ नरगिस के पास लाया। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारी माँ नहीं है, माँ है तुम्हारी ये। निमल ने पहले बाबा को देखा, अपने फिर नरगिस को देखा। एक तरफ इसके कान में हाफिज साहिब की आवाज गूंजी, माँ है तुम्हारी ये। दूसरी तरफ जाजुब की आवाज थी, माँ है ये मेरी। फिर उसे जाजुब का खुद को छूना याद आया। उसने अपने होंठों पर हाथ फेरा जहां जाजुब का लम्स आज भी उसे महसूस हो रहा था। वो ये सोचकर अपने एविश खो बैठी कि अगर नरगिस इसकी माँ है तो क्या इसकी जिल्लत का सबब बनने वाला जाजुब इसका बे है। सच्ची कहानी बदबख्त, किस्त नंबर 20। वो ये सोचकर अपने एविश खो बैठी कि अगर नरगिस इसकी माँ है तो क्या इसकी जिल्लत का सबब बनने वाला जाजुब इसका बे है। इसके बाबा ने इसे थाम कर इसका चेहरा थपथा। निमल निमल बेटा। एविश में नरगिस ने जल्दी से पानी लाकर उसके मुंह पर छिड़का। वो उठते ही बाबा से लिपट गई। बाबा बाबा नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। बोले ना, ये झूठ है बाबा। वो अचानक इस खबर से खुद संभाल ना सकी। नरगिस ने इसके सर पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, मेरी निमल, यहां देखो मेरी तरफ। मत हाथ लगा है मुझे, मत चेओ। आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरे बाबा मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। वो संभाले नहीं संभल रही थी। नरगिस के चेहरे में इसे खुद पर बहकता एवं खुद को छूता एवं जाजुब नजर आया। वो भागकर ऊपर कमरे में और खुद को लॉक कर लिया। मिसेज आरिफ भी आ चुकी थीं। इस अचानक की सिचुएशन से वो भी परेशान हो गए। निमल को चीखता चिंघाड़ता देखकर जियान भी रोने लगा। से मोमिल अपने कमरे में ले गए। सब निमल का दरवाजा बजाने लगे, खोलो मेरी जान, दरवाजा में मर जानेगा। नरगिस भागते एवी अपने घर। जाजुब जाजुब जल्दी इलाक खोलो इसका, वो कुछ कर ना ले अपने साथ। नरगिस उसे बाजू से घसीटने लगी। कौन कुछ करना ले, बता है तो सही उम्मी। निमल ने खुद को लॉक कर लिया है, जल्दी
वो भागता एवा नरगिस के साथ निमल के कमरे के पास आया तो वहां अयाज को देखकर इसके भी एबिश उड़ गई। जाजुब दरवाजा खोलो जल्दी, वो उसे पहचान गई थे। मेरी बच्ची कुछ कर ना ले। वो चकरा कर रह गया। क्या निमल आपकी बेटी है? उसने हाँ में सर हिलाया। फिर नरगिस को देखा। इसके हाथ कपकपाने लगे, लेकिन एक ही झटके में उसने लाख तोड़ डाला। सब एक साथ अंदर वो पागलों की तरह चला, को भी मेरे करीब ना आए। अयाज ने इसके आगे हाथ जोड़े। मुआफ कर दो मेरी जान मुझे। बाबा कैसे बोल सकते हैं अब मुझसे इतना बड़ा झूठ? कैसे दे सकते हैं अब मुझे इतना बड़ा धोखा? बाबा मैं तो आपको मुआफ कर दूं, लेकिन मेरे साथ जो एवा इसकी तलाफी कौन करेगा? जाजुब और अयाज निमल की तरफ बढ़े। उसने साथ टेबल पर पड़ी छुरी उठा ली। मैं अपनी जान ले लूंगी, छोड़ दे मुझे अकेला। बाबा आपने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। अयाज की तबीयत खराब होने लगी। जाजुब ने सबको बाहर निकाला और कमरा लॉक कर दिया। निमल ने इसे देखकर छुरी अपनी कला पर रखी। तुम तो मेरे पास आना भी मत। क्यों? तुम्हें ये सुनकर जरा भी शर्म नहीं कि नरगिस मेरी भी मां है? वो ना में सर हिलाकर बोला। नहीं, मुझे को शर्म नहीं। जाजुब इसके शाकिद होने की वजह समझ गया था। वो इसकी तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही अपनी कला पर छुरी फेरी, जाजुब ने इसे खींचकर अपने साथ लगाया और दूसरे हाथ से इसके मुंह पर हाथ रखा। चुप, बिल्कुल चुप। खामोशी से मेरी बात सुनो। बे नहीं हूं मैं तुम्हारा। नरगिस का खून हूं मैं, लेकिन इसका बेटा नहीं। हुक्फो है वो मेरी। निमल इसकी गिरफ्त में जितना उछल रही थी, एकदम इसकी बात सुनकर ठंडी पड़ गई। जाजुब ने इसे छोड़ा तो वो फर्श पर आ बैठी। वो इसके सामने हाथ जोड़कर बैठा। देखो निमल, किस्मत उस तरह मुझे लाकर तमेरी सामने खड़ा करेगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। जो भी एवा तमेरी मेरे बीच, इसे हमारे बीच ही रहने देना। अगर उम्मी को इस बात का इल्म एवा के इनके अपने ही खून ने अपनी ही घर की इज्जत पर हाथ डाला था तो वो मर जाएगी। हाथ जोड़ता हूं तमेरी आगे। निमल बहुत बुरी तरह टूटी थी। चिल्लू उठो, मिलो अपनी मां से, जो बरसों तड़पी है तमेरी लिए। तुमने तो ये सुनकर सब्र कर लिया था कि मां का वजूद है ही नहीं, लेकिन मैंने तड़पते देखा है इनको तमेरी लिए। इस मां का क्या हाल होगा जिसने जीते जी अपनी औलाद की जुदा सही हो। 5 वक्त की नमाज में वो 500 बार तुम्हें मांगती थी कि एक बार तुम इनको मिल जा। आज 24 साल बाद वो वक्त आया है तो मस्त इसकी ममता का इम्तिहान ना लो। बाबा ने क्या क्या मेरे साथ। मेरी जिंदा मां को मुर्दा कहते रही। वो बाबा है तमेरी दुश्मन नहीं, को वजह जरूर होगी जिसने इनको मजबूरी की बोहे में इतना अरसा जकड़ी रखा। तुम तो जीती रही मां के बगैर, लेकिन तमेरी बाबा नहीं जी सकते तमेरी बगैर। चिल्लू उठो। जाजुब ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं उठ सकती हूं खुद, तुम्हारी जरूरत नहीं। वो बाहर तो एक तरफ तरसी एवं ममता बाहें पेलाए खड़ी थी, एक तरफ बाप की आहें भरती मजबूरी और मुआफी कली जोड़े हाथ। उसने पलटकर जाजुब की तरफ देखा जो उसकी पुश्त पर खड़ा था। वो भागकर अपने बाबा के गिले लगी जिनकी सांसों की डोर उसके हाथ में थी। बाबा अपने क्यों, कैसा ऐसे? बाबा क्यों? मुआफ कर दे अपने बाबा को। वो भी सिसक सिसक कर रो रही थे। वो अलग एव बाबा से, और जब नरगिस के गिले लगी तो हर आंख हर मंजर अशबार हो गया। नरगिस दीवानों की तरह इसका अंग अंग चूमने लगी। इस ऑफिस के काम में बहुत मसरूफ था। रात को देर से आने लगा वो। 2 दिन तोरताबा ने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। दिन वो गुजार लेती थी, लेकिन शाम की फैलती सियाही इसको अपने खौफ व हिरास में जकड़ लेती। इज़्द आज रात 12 बजे घर आया। वो इसके पीछे एक बात सुने। सुबह सुना देना, अभी मैं बहुत थक गया हूं, सोने दो। वो जिन कदमों से थी उन्हीं पर पलट गई। सुबह इज़्द की आंख देर से खुली। घड़ी को देखकर वो फौरन उठा। 11 बज रही थी। हसब मामूल ये कसूर भी राबा का था। वो इस पर बरस पड़ा। उठाया, क्यों नहीं तुमने मुझे आप कह देते रात को। अच्छा तो अब एक एक बात में तुम्हें समझे।
तुम बच्ची तो नहीं हो, मेरे ऑफिस जाने का वक्त तुम्हें मालूम है ना, 9 बजे मुझे जाना होता है। अजीब जाहिल और फोहर लड़की हो तुम। वो उसे सुनाता एवा ऑफिस की तैयारी करने लगा। वो गर्मा गर्म चाय लेकर जैसे ही इसके कमरे की तरफ बढ़ी तो तेजी से बाहर आते एवी डाबा से टकरा गया। सारी चाय डाबा के हाथ पर और कुछ इसके कपड़ों पर गिरी। इज़्द ने गुस्से से इसे चमट दे मारी। अंधी हो क्या देखकर नहीं चल सकती। इज़्द पेंट कोट की वजह से बच गया पर राबा के पूरे हाथ जल गई। वो जलते हाथों से कांच उठाने लगी। इज़्द कपड़े बदलकर ऑफिस भागा। वो अपने जलते हाथ बार बार पानी में डालकर ठंडे करती रही। पानी से हाथ के छाले मज़्द खराब होगी। इज़्द आज भी लेट आया तो आते साथ सो गया। सुबह 8 बजे उसे राबा ने जगाया। वो नहाकर बाहर आया। राबा ने टेबल पर उसके सामने चाय रखी तो इज़्द ने इसका जला एवा हाथ देखा। रुको, हाथ गे। ओ शट, ये क्या, ये कैसे जला इतना ज्यादा? कल जब अब से टकरा थी तो चाय से जला। बताया क्यों नहीं तुमने उस वक्त? इज़्द को अपना थप्पड़ याद आया। अब पहले ही गुस्से से जले भुने एवी थे, ऊपर से मैं अपना बताती कि मैं भी जल गहूं ताका और मार खाती अब से। इज़्द को इस पर रहम भी आया, लेकिन इसका जवाब सुनकर दांत पेश कर बोला, वैसे तो तुम बोलती ही नहीं हो, लेकिन बोलती हो तो बड़े खरे जवाब देती हो। वो इसकी आंखों में झांक कर बोली, ये खरापिन मुझ जैसे खोटे सके में दुनिया वालों की इनायत से आया है। वो बोला, चिल्लू ए विस्पटल, नहीं जाना मुझे। क्यों नहीं जाना? तुमने जख्म देखा है अपना कितना खराब हो गया है। अपने तो मेरी खाल भी उतारी थी भरगी वो जख्म, ये तो सिर्फ जला है, ठीक हो जाएगा खुद ही। इज़्द ने होंठों पर जबान फेरी। कैसे बताता उसे कि इसके जिस्म के वो जख्म खुद ठीक नहीं, एवी मैंने ठीक कही है। चुपचाप चलो मेरे साथ। इज़्द इसका हाथ पकड़े ले गया। ए विस्पटल। 2 उंगलियां इसकी ज्यादा जल थीं। पूरे हाथ पर बैंडेज की डॉक्टर ने और वापसी में घर ड्रॉप कर गया। आज शाम वो जल्दी घर आ गया। राबा उल्टे हाथ से बड़ी मुश्किल से खाना खा रही थी क्योंकि थोड़ा सा उल्टा हाथ भी जला हुआ था। इज़्द सीधा इसके पास आकर बैठा। वो उठ खड़ी है। बैठो। इज़्द ने उसे वापस बैठाया और फिर उसकी चिरखिसका कर खुद से करीब की और नवाला अपने हाथों से बनाकर इसके मुंह में डालने लगा। खोलो मुंह। वो हैरत से फटी फटी आंखों से इज़्द को तकने लगी। कैसा है ये शख्स? कभी बहार की बरसती बारिश जैसा और कभी गर्मी की कड़कती धूप जैसा। राबा के आंसू बहने लगे। लो जी, मैंने मुंह खोलने को कहा था, इंसूहे का नलका नहीं। राबा को वो वक्त भी याद आने लगा जब देवी इसके हाथ से नवाला छीन लेती थी। रोना बाद में, अभी खाना खा लो। इज़्द की नजर नवाले इसके मुंह में डालते एवी इसकी गर्दन पर पड़ी। वहां भी छाले थे। इज़्द ने इसका दोपट्टा हटाया तो उसने फौरन इज़्द के हाथ पकड़े। इज्जत नहीं लूट रहा तुम्हारी, ये देख रहा हूं, यहां से भी जली हो तुम। चिल्लू, ट्यूब लगा दूं तुम्हें? नन्ननी नहीं मम्मम, मैं खुद लगा लूंगी। वो इतने मेहरबान होते। इज़्द से डरी। डरो नहीं, लिखा नहीं जानेगा तुम्हें। वो उसे अंदर ले गया। ये शर्ट लो, पहनो इसे। इज़्द ने उसे अपनी शर्ट दी। क्यों? क्योंकि ये शर्ट है, इसके बटन खुल जाते हैं, आसानी से कमीज की तरह उतारनी नहीं पड़ेगी। वो शर्ट लिए वॉशरूम और जब पहनकर बाहर आई तो इज़्द ने बमुश्किल अपनी एनस रोकी। वो इज़्द की आंखों में छपी एनस और शरारत देखकर डरी और भाग गई कमरे से। इज़्द ने एनस्ती एवी पीछे से आवाज लगा, ट्यूब तो लगाने देती, मैं खुद लगा लूंगी। बाबा की गोद में सर रखे निमल लेटी एव थी। बाबा, आपने क्यों मुझे मामा से दूर रखा था? क्यों मुझसे झूठ बोलने की जरूरत पड़ी आपको? बेटा, कुछ गुजरे वक्त की तलखियां बहुत नाकाबिल बर्दाश्त होती है। तुम्हारी मामा बहुत दूर हो गई थी मुझसे, तुमसे, जाजुब और आजिब की वजह से। मैंने एमशा खुद को तुम्हारी माँ कई सबसे खास पाया था। ऐसे में मुझसे हटकर इसकी तवज्जो, इसका प्यार उन 2 बच्चों में बंटता मैं नहीं देख सका। इस जब अपनी माँ कली रोता था तो कभी कभार वो तुम्हें भी भूल जाती थी। मुझे भी टाइम नहीं दे सकती थी पहले जैसा। मैं हालात से समझौता करने के बजाय बिखरता गया। तुम्हारी माँ की वालहाना मोहब्बत मुझसे रूठती गई
और मैं जज्बात की रूह में बहकर किसी और समत जा निकला। मैंने दूसरी शादी कर ली थी। तुम्हारी माँ को जब पता चला तो वो मेरे साथ एक दिन भी रहने को तैयार न थी। मुझे घर छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ ले गया। वो मुझे रोकती रही, लेकिन मैं उस वक्त बिल्कुल अंधा हो चुका था। तुमसे मिलने थी एक बार तुम्हारी माँ। उस वक्त मेरी दूसरी बीवी भी मुझे छोड़कर दूसरे जहां चली गई थी। मेरे पास जीने की वजह सिर्फ तुम थी उस वक्त। मैंने तुम्हारी माँ को दरवाजे से लूटा दिया था, ये कहकर के अगर वो दोबारा तुमसे मिलने तो मैं ये शहर छोड़कर चला जानेगा। लेकिन वो माँ थी कहाँ इसके कदम रुकने थे। मैं तुमसे जुदा एक पल नहीं सह सकता था। इस्लामाबाद छोड़कर मैं कराची आ गया। तुम उस वक्त 2 साल की भी नहीं थी। बच्चों को घर में कुरान और ट्यूशन पढ़ाने लग गया और कुरान पढ़ाते पढ़ाते खुद कुरान हिफ्ज किया। वक्त का पता ही ना चला और तुम बड़ी होती गई। एक पल मेरा दिल चाहा तुम्हें लेकर जाए तुम्हारी माँ के पास, लेकिन फिर इस खौफ ने मुझे जकड़ लिया कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लग जा, मुझे छोड़ ना जा। तुम्हारी सांसों से मेरा दिल धड़कता था। फिर मैंने सोच लिया था कि जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें तुम्हारी माँ का बदगा ताका एक ही बार तुम्हारी जुदा से मरूं। मैं आया था कुछ साल पहले तुम्हारी माँ से मिलने, लेकिन फिर इससे मिले बगैर लूट आया कि क्या मुंह लेकर जाता। बेवफा की थी मैंने तुम्हारी माँ से। वो बाप के आंसू साफ करते बोली, बाबा अगर मुझे अब भी माँ ना मिलती तो अब सच में मुझे बताते मेरी शादी के बाद कि मेरी माँ जिंदा है। हाँ मेरी जान, मैंने अपने रब से वादा किया था उसके घर जाकर कि तुम्हारी जल्द अज जल्द शादी हो ताकि तुम्हें तुम्हारी माँ से मलवा सिक्कों में। लेकिन देखो अल्लाह के फैसले हमारे फैसलों से कहीं ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इसने अपने फैसले के मुताबिक तुम्हारी माँ की अर्जी पहले सुन ली। मामा जियान छोटे छोटे कदम उठाता निमल के पास आया। उसने जियान को गोद में लेकर चूमा। कितना प्यार करती हो तुम जियान से? बहुत ज्यादा प्यार करती हो बाबा, मेरी जान है ये। अयाज इसकी तरफ देखने लगे। तुम ना इसकी माँ हो ना इससे तुम्हारा को बहुत करीबी रिश्ता है। अगर इसकी माँ ले जाए इसे तुमसे दूर तो रह सकोगी इसके बगैर। निमल ने जियान को अपने सीने से दबोच लिया। नहीं बाबा, नहीं रह सकती मैं इसके बगैर। बेटा फिर तुम तो मेरी औलाद हो, मैं कैसे रहता तुम्हारी बगैर। तुम्हारी माँ को छोड़कर जिसके साथ मैंने जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे वो मुझे छोड़ गए। ऐसे में तुम भी माँ की तरफ लूट जाती तो मैं मर जाता तुम्हारी बगैर। वो अपने बाबा के आंसू पोंछकर बोली, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती बाबा। नरगिस ने अंदर आते एवी कहा, हाँ एक में ही ढीठ हूं ना जो सबके बगैर रह सकती हूं। नहीं नरगिस, ऐसी बात नहीं, ढीठ नहीं हो तुम। हम सबसे ज्यादा मजबूत हो जिसने टूटे रिश्तों को जोड़ा है एमशा। नरगिस सर झुकाए बोली, मैं क्या, मेरी औकात किया, सब रब की दीन है। मैं तो उसकी गुनहगार सी आम सी बंदी हूं। तुम आम नहीं हो सकती नरगिस, तुम जैसा हौसला, तुम जैसी एंत किसी आम इंसान में हो ही नहीं सकती। मुझ जैसे बेवफा शौहर को मुआफ करने का हौसला भी तुम ही में है। तुम चाहती तो दूसरी औरतों की तरह अब भी मेरी बेटी को अपनी तरफ माल करके मेरे खिलाफ भड़का सकती थी या अपनी 24 साला भड़ास निकाल सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एमशा तकदीर के लिखे पर तुमने बड़ी फरमाबरदारी से सरखम किया है अपना। जो सर रब के फैसलों पर झुके वो आम नहीं हो सकता। जिसने एमशा दूसरों की बड़ी बड़ी खताएं को मुआफ किया हो वो खुद कैसे गुनहगार हो सकता है। तुम्हारी बेटी भी मैं शुक्र अदा करता हूं तुम पर गए, उसने भी मुझे मुआफ किया। जानती हो इसे देख देख कर मैं क्यों जीता हूं, क्योंकि इसमें तुम्हारा अक्स, तुम्हारा किरदार नजर आता है मुझे। नरगिस मुस्कुरा, मैं कभी भी रब से मायूस नहीं हूं अयाज, असली आज ये दिन मुझे नसीब हुआ। मैंने रब की इस बात को एमशा अपने पलों से बांध कर रखा कि इसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। अर्जा पाकिस्तान आ चुकी थी, इस बार वो नरगिस के घर ही ठहरी। निमल से मिलकर वो न सिर्फ खुश एओ बल्कि इसकी क्लोज फ्रेंड भी बन गई। बातों बातों में वो अर्जा की जाजुब से शदीद मोहब्बत को भांप गई। जाजुब भी बहुत क्लोज था अर्जा से। अर्जा इज्त के मुतालिक बात करने लगी नरगिस से। आंटी इज्त को अपने जाजुब और अयाज अंकल का बताया। नहीं अभी नहीं बताया, अब इसकी फितरत से वाकिफ हैं आंटी।
उसने एक एनिगामा बर्पा कर देना है, एक जाजुब और फिर दूसरा अयाज अंकल। अब जानती है वो दोनों के नाम से भी चढ़ता है। इनको अचानक यहां देखकर बर्दाश्त कैसे करेगा। मैं अभी नहीं बता सकती कुछ भी इसे, क्योंकि अगर उसे मैंने बता दिया तो वो वापस ही नहीं आएगा। यहां मेरे पास होगा, मैं गार्ड कर लूंगी इसे। एमएमएम आंटी अब जाजुब की शादी क्यों नहीं कर देती? वो माने तब ना, लेकिन अब इसकी नहीं चलनी, अब करनी होगी उसे शादी। बीवी के खोंटे से बंधेगा तो अक्ल एगी उसे। वो पॉप कारण खाता अंदर आया। क्या पट्टियां पड़ा रही हो मेरी माँ को? और ये किसके बैल को खोंटे से बांधने की बात हो रही है? जाजुब की बात पर नरगिस, अर्जा, निमल जोर से एनसनी लगे। बैल की नहीं, तुम्हें खोंटे से बांधने की बात कर रही हूं। अरे मेरी पागल अम्मा, जाजुब को रोकने वाला इतना मजबूत खोंटा अभी तक बना ही नहीं। बेटा, जिस खोंटे की मैं बात कर रही हूं ना, इससे अच्छे अच्छे काबू में आ जाते हैं, क्योंकि इस खोंटे की रस्सी बीवी के हाथ में होती है। वो अच्छा, तो अब मेरी शादी की बात कर रही है? हाँ जी, अर्जा और नरगिस एक साथ बोले। वो निमल को देखने लगा जो चुप थी। देखते हैं अम्मा कौन किसको अपने काबू में करता है। अयाज सऊदी अरब वापस जा चुके थे। अर्जा शॉपिंग पर, नरगिस आंटी को साथ ले। जाजुब जॉब पर था। आज वो जल्दी घर आ गया था। उम्मी उम्मी, अर्जा, निमल कहाँ है सब? निमल बाहर। जाहिलों की तरह पूरे घर में चला रही हो, किसी ने मैनर्स नहीं सके तुम्हें। बंदा ऑफिस से थका हारा आई तो उसे पहले चाय पानी का पूछते हैं, सलोअत नहीं सुनाते। वो चढ़कर बोली, मैनर्स आते हैं मुझे अच्छे से, लेकिन मैं तुम्हारी नौकर नहीं। वो इंसा, उफ़्फ़ अल्लाह, इतना जला कटा अंदाज। नौकर ही तो नहीं करते ये काम, बीवी भी करती है। शौहर ही समझकर चाय पिला दो। कुकक कक कक, क्या कहा तुमने? उसने कमर पर हाथ रखा। बीवी और तुम्हारी, वो भी मैं। हाँ। जाजुब ने इसकी तरह मुंह खोले हाँ में सर हिलाया। तुम कब से देखने लगे मेरी शादी के ख्वाब, वो भी अपने साथ? वो सर के पीछे हाथ ले जाकर बोला, यार सच सुन ही लो तुम आज। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी मेरे दिल में उतर गई थी तुम, इसीलिए उठाकर ले गया था। वो चीखी, बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो मुझे दोबारा बीवी समझा तो वक्त पर ही निकाल दो ये ख्याल दिल से, तो अच्छा है। जाजुब ने जाते एवी इसका रास्ता रोका। अगर मैं ना निकालूं तो फिर इस घर से ही निकलवा दोनगी में तुम है। वो इसके करीब, एवा धमकी दे रही हो मुझे? समझा रही हूं मैं तुम्हें, अब उसे धमकी समझो या नसीहत, तुम्हारी मर्जी है। राबा का दिल बहुत उदास था। वो चारदीवारी में बिल्कुल तन्हा रह रहकर आजिज आ चुकी थी। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। राबा बाहर और सीधा झील के किनारे बच्चों के पास आकर बैठ। इज़्द घर आ गया था जल्दी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। घर आया तो राबा नहीं थी। वो परेशान हो गया। राबा ताबा, वो आवाजें लगाने लगा। कहाँ गिए? घबरा कर वो बाहर आया। आसपास देखा तो वो झील किनारे बैठी एव थी। वो इसके पास आया। क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं, दिल घबरा रहा था असली यहाँ आई। चलो घर, अब चाहे मैं आती हूं। नहीं, मेरे साथ चलो। वो उठी और उसके साथ चलने लगी। बारिश के पानी से इसका जूता स्लिप कर रहा था। इज़्द ने एक नजर उसे देखा। भीगे चेहरे पर बिखरे बालों में वो खूबसूरत बिला लग रही थी। वो फिर स्लिप एव तो इज़्द ने इसका हाथ मजबूती से थामा और अपने साथ चलाने लगा। राबा का दिल चाहा ये वक्त यहीं थम जाए। नरगिस लान में पौधों को पानी दे रही थी। अम्मी निमल इसके पास। उम्मी, अब जाजुब की शादी अर्जा से क्यों नहीं कर देती? बेटा, मैंने इसे कहा काफी बार, लेकिन वो किसी और को पसंद करता है। तो क्या एवा? वो बहुत अच्छी लड़की है उम्मी, जाजुब को पसंद भी करती है। नरगिस ने जांचती एवं नजरों से अपनी बेटी को देखा। और तुम? मां के सवाल पर वो सटपटा। क्या मैं? तुम पसंद नहीं करती जाजुब को? ये कैसा सवाल है अम्मी?
नरगिस ने इसका हाथ पकड़ा। जो पूछा है वो बता। निमल ने नजरें झुका ले। नहीं उम्मी, वो मुझे एज ए लाइफ पार्टनर बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों, क्या कमी है इसमें? अम्मी, बात कमी की नहीं है। तो फिर? बस छोड़िए आप इस बात को। अर्जा की बात करते हैं। वो तुम्हें पसंद करता है और मैं और तमेयारी बाबा भी यही चाहती है। लेकिन मैं नहीं चाहती उम्मी। अंदर आते जाजुब ने इसकी बात सुन ली। क्यों, तुम क्यों नहीं चाहती? बस नहीं बता सकती मैं। तुम्हें बताना होगा वरना मेरा फैसला मानना होगा। जाजुब नरगिस के पीछे आ खड़ा। एवा उम्मी, कहाँ गया वो रिवाज, वो वक्त जब बेटियां माँ बाप की मर्जी में राजी हो जाती थीं। निमल उसे देखकर बोली, तुम कौन होते हो माँ बेटी के बीच बोलने वाले? वो नरगिस को कंधों से पकड़कर बोला, इस माँ की बेटी का होने वाला दामाद। कान खोलकर सुन लो, नहीं करनी मैंने तुमसे शादी। वो चढ़कर चल दी वहां से। जाजुब कमरे में सॉन्ग सुन रहा था। वो उसके सर पर आन खड़ी। ये क्या नया शोशा छोड़ा है तुमने? वो उसे अपने कमरे में देखकर खुशी से उछला। ज़ेई नसीब, ज़ेई नसीब, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? ये क्या हर वक्त जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो मुझसे? क्योंकि तुम इसी काबिल हो। हम मतलब पहले गुस्सा देगी फिर। वो आगे गुनगुनाने लगा, होले होले हो जाएगा प्यार बली। वो चीखी, शीट अप। मैं तुम्हें साफ साफ अल्फाज में आखिरी बार समझाने हूं। अपने ये मजाक और अपने अधूरे ख्वाब खुद तक महदूद रखो। मैं मर जानगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। जाजुब ने इसकी आंखों में देखा। वो बिल्कुल सुरसत थी। तुमने मुझे अभी तक मुआफ नहीं किया, कभी भी मुआफ नहीं करूंगी। वो जिल्लत के हार जो तुम्हारी वजह से मेरे गिले का तौक बने थे, अब भी इनकी फांस मुझे महसूस होती है। ना तो मेरा दम घुटने लगता है और तुम्हें देखकर भी। अर्जा इनकी सारी बातें सुन चुकी थी। वो इसकी आमद से बेखबर थे। कौन सी जिल्लत और कौन से फंदे? अर्जा की आवाज पर दोनों चौंके। जारी है किस्त नंबर 21। अर्जा इनकी सारी बातें सुन चुकी थी। वो इसकी आमद से बेखबर थे। कौन सी जिल्लत और कौन से फंदे? अर्जा की आवाज पर दोनों चौंके। जाजुब झट से उठा। तुम्हें इसके गिले में को फंदा को तौक को हार नजर आ रहा है? अर्जा ने नामे सर हिलाया। बस वैसे ही पागलों वाली बातें करती रहती है। निमल की आंखों में आंसू थे। पागल होगे तुम, पागल होगी तुम्हारी बीवी। जाजुब को फिर शरारत सूझी। और पागल एविंगे मेरे बच्चे भी, है ना? वो जोर जोर से एमे सर हिलाने लगी। अर्जा जाजुब का हाथ पकड़े उसे बाहर ले गई। चलो मीर साथ। कहाँ? किसी पार्क। इस बागोड़ बली को भी ले लो साथ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम चलो। वो दोनों घास पर टहलने लगे। बता अब किस जिल्लत की बात कर रही थी निमल? जाजुब खामोश रहा। बोलो जाजुब, ऐसा क्या है तुमने इसके साथ जो वो मरने को तैयार है पर शादी कली नहीं? जाजुब कुछ पिल खामोश रहा, फिर ए टू जी उसे सारा किस्सा सुनाया। इसकी बात सुनकर अर्जा को काफी हैरत आई, लेकिन इसने उस वक्त शादी पर फोकस किया। वो राजी नहीं है तुमसे शादी पर, क्या करोगे? तुम मदद करो ना यार प्लीज। उसे समझे, मुआफ कर दे मुझे। मैं इसी की खातिर लूट कर आया हूं। सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। हर गुनाह के रास्ते से मुंह मोड़ आया हूं। लूट कर वापस नहीं जाना चाहता। मैं मानता हूं मेरी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं इसका अजिल्ला भी तो करना चाहता हूं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूं उसे गार्ड कर लूं, लेकिन वो फिर भी ना मानी तो फिर उसे ये समझा देना, अगर मेरी नहीं है तो मैं इसे किसी और का होने भी नहीं दूंगा। जाजुब की आज छठी थी। लेट उठा काफी वो। निमल किचन में कुकिंग कर रही थी। नरगिस जियान के साथ खेल रही थी। अम्मी जान अपनी बहू से कहीं एक कप कड़क सी चाय तो पिला दे। वो एंड का चमचा हाथ में लिए बाहर। क्या कहा तुमने? वो सादगी से शाने उचक्का कर बोला। जो तुमने कहा था वही कहा है। झूठ मत बोलो।
वरना ये चम्मच तमेरी सर पे दे मारोनेगी। नरगिस दोनों को देखने लगी। कसम से उम्मी में झूठ नहीं बोल रहा। जब पहली बार उसे यहां देखा था तो उसने यही कहा था कि बहू है इस घर की। मैंने पूछा इससे कौन से बेटे की, तो उसे अपने शौहर का नाम भी नहीं आता था। नरगिस ने निमल की तरफ देखा। मम्मी फजूल में बोल रहा है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। रुको जर्रा, तुम वो चम्मच लिए इसकी तरफ बढ़ी। जाजुब को असद का फटा एवा सर याद आया तो वो भागा बाहर। वो भी इसके पीछे अंधाधुंध भागी। जैसे ही भागते एवी इसने चम्मच से वार किया तो अंदर आते शाहजी के सर पर जा लगा। जाजुब की एनस रुक ही नहीं रही थी शाहजी के सर पर चम्मच से पड़ने वाला गेंद नुमा गुल्लूला देखकर। शाहजी चकरा कर रह गया। निमल शर्मिंदगी से अंदर भागने लगी तो जाजुब ने उसे आड़े हाथों लिया। कहाँ भाग रही हो, दाम दबाकर। शाहजी की आवाज पर नरगिस बाहर आई। उसने सर पकड़े सलाम किया। सर क्यों पकड़ रखा है तुमने? मुझे नहीं मालूम था अम्मा जी, आपके घर में मेहमानों को चमचे के वार से वेलकम किया जाता है। नरगिस को काफी गुस्सा आया निमल पर। ये क्या हरकत की है तुमने? जाजुब ने जल्दी से खींचकर उसे नरगिस के आगे पेश किया। अम्मी वो, मैंने उसे मारा था, ये बीच में कैसे लगा इनको मुझे नहीं पता। शाहजी रुमाल से सर दबाकर बोला। जाहिर है मैडम, मारने वाले को कैसे पता चल सकता है? ये तो चम्मच खाने वाला ही जानता है कि दिन में तारे कैसे नजर आते हैं। हद होती है निमल बचपने की भी। अगर इसका सर फट जाता तो। जाजुब फौरन बोला। अम्मी बेफिक्र, सर फटने से खून नहीं निकलना था बल्कि सारा भूसा आना था बाहर। नरगिस को एनस इग, वो शाहजी को अंदर ले गई। निमल किचन में गायब हो गई। नरगिस ने शाहजी सर पर बाम लगा। निमल ने एंड का चम्मच झाड़ा तो आवाज बाहर तके। जाजुब ने ऊंची आवाज लगा, चम्मच जरा ए सित्ता एला बहू रानी, मेहमान का सर हिलाकर भी चीन नहीं आया तुम्हें। निमल ने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की इसकी बात। बस कर दो, अब क्यों तंग करते हो इतना इसे? अर्जा अभी अभी जागी थी, आंखें मसलती बाहर आई। शाहजी को देखकर बड़ी खुश हुई। अरे अब यहां, वो सामने बैठी। निमल ने किचन से बाहर झांका कि अर्जा कैसे जानती है शाहजी को। वो तीनों आपस में एनस्ती बातें करते रही। नरगिस किचन में निमल के साथ मसरूफ हो गई। सब ने मिलकर खाना खाया। निमल बिल्कुल खामोश थी। जाजुब ने शाहजी को कहनी मारी, खाना कैसा लगा तुझे? शाहजी ने निमल की तरफ देखा जो बड़े गुस्से से जाजुब को देख रही थी। शाहजी बोला, अच्छा है, अच्छे से तारीफ कर दे यारा, वरना ऐसा ना हो कि आते एवी चम्मच खाने से स्वागत एवा था तेरा, अब जाते एवी जूते ना खाने पड़ जाए। सब बहुत जोर से एनसी। निमल उठकर जाने लगी तो नरगिस ने रोका। रुको निमल, ऐसे खाना बीच में छोड़कर उठना मुनासिब नहीं। इस मस्तानी की बातें दिल पर ना लिया करो, अक्ल से पैदल है ये। तुम भी खा लो निमल जी, काफ 2-4 चमचे। अक्ल अपने आप आजनी है। निमल ने मुंह लटकाकर मां की तरफ देखा। मजाक कर रही है निमल, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? अर्जा मुस्कुराकर बोली, बुरा तो शाहजी को मनाना चाहे जिनको आते ही तुमने दिन में तारे गई। अब की बार वो भी मुस्कुरा। अर्जा सारे बर्तन उठाने लगी। निमल बेटा चाय बना ला, सब गली। कुछ देर बाद जाजुब किचन में इसके पीछे गया। माड स्वीट हार्ट, चाय अच्छी बनाना ओके। वो खूनखार नजरों से मुड़ी। तुम्हारी चाय में जहर मिला के दोनगी में तुम है। वो कान खुजाने लगा। कानों में तो काफी घोलती रहती हो, चाय में भी घोल दो, नो प्रॉब्लम। तुम किचन से बाहर जागे, आमे चली जाए। वो चला गया। शाहजी, अर्जा और जाजुब तीनों बाहर लान में बैठे एवी थे। चाय के कप उसने शाहजी और जाजुब के हाथ में पहले दी। जैसे ही शाहजी ने चाय का एक सप लिया तो चाय हल्क से नीचे ना उतरी। इसने घास पर चाय उगा दी। जाजुब ने जल्दी से इसके हाथ से चाय का कप लिया। अलिफ वाओ बढ़िया छोटिया हमजा, यार कहीं सच में तो नहीं जहर डाल दिया तुमने चाय में? शाहजी का दूधिया चेहरा लाल हो गया। मेरा कप था यार ये।
निमल की तरफ देखा इसने। तुम्हारी दुश्मनी इससे है ना मुझसे कौन से जन्म के बदले ले रही हो। वो फौरन बोली, सॉरी बे, वो चाय का कप बदल गया था। जाजुब साहब तो भी अपने इरादे बदल ले, ऐसे ना हो शादी से पहले ही तो हलाक हो जाए। जाजुब ने चाय चखी तो नमक से जहर बनी एओ थी। राबा इज्द के कपड़े इस्त्री कर रही थी। सुनो जी, शाम को शादी में जाना है, ड्रेसेस हैं तमेरी पास शादी कली। जी उम्मी ने रखे थे 2-4 फ्रॉक्स हैं, हम मम्मम रात को फिर तैयार हो जाना। जी ठीक है। वो अस्वद की काल पर घर से चला गया। शाम को लूटा तो वो तैयार बैठी थी, गोल्डन फ्रॉक में डायमंड की नाजुक सी ज्यूली पहने, लंबे दराज बालों की चुटिया आगे लटका, रेड लिपस्टिक में वो आफत लग रही थी। इज्द की निगाह ठहर से गई इस पर। जाना नहीं है, चेंज कर लें आप भी। ओके। वो जल्दी से तैयार हुआ और वहां पहुंचे वो दोनों। मायूं की रस्म थी आज। 2 पार्टियों के बीच अंताक्षरी का गेम अपने जोरों पर था। मिसेस हमदानी भी वहां मौजूद थीं। वो कुछ देर बाद इज्द को मिले। उन्होंने इज्द को भी शामिल किया अपनी साथ। एक लफ्ज इनको दिया जाता, दोनों में से जो पहले गाना गाता वो ग्रुप जीत जाता। अब की बार लफ्ज खूबसूरत था। इज्द ने पहल की। खूबसूरत है वो इतना। इसके ग्रुप ने सीटियां बजाकर खूब शोर किया। इज्द की आवाज बहुत खूबसूरत थी, इस पर इसकी मुस्कुराती आंखों का अंदाज इससे भी निराला था। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले रहा नहीं जाता। चांद में दाग है ये जानते हैं हम मम्मम, लेकिन रात भर देखे बना असको रहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। इज्द के शामिल होते ही इनका ग्रुप जीतने लगा। अगला लफ्ज इश्क था। एक बार फिर इज्द की आवाज गूंजी, ए गंदुमी रंगत वाली, ए गंदुमी रंगत वाली, हर पिल तेरे जलों का है मेरा इश्क सवाली। इज्द की आवाज पर रताबा के दिल के तार छिड़ने लगे। 2 घंटे गेम चला। आखिरी गाना भी इज्द ने ही गाया। लफ्ज था चांद। मैंने पूछा, चांद से देखा है कहीं मेरे यार साहे से? चांद ने कहा, चांदनी की किस्म नहीं नहीं नहीं। सब ने इज्द को ये गाना पूरा सुनाने को कहा। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहे से? चांद ने कहा, चांदनी की किस्म नहीं नहीं नहीं। मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा, कलियों से मिसालें तेरी पूछे, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से, फलक हो या जमीन, ऐसा फूल है कहीं? बाग ने कहा, हर कुल्ली की किस्म नहीं नहीं नहीं। चाल है कि मौज की रवानी, जुल्फ है कि रात की कहानी, होंठ हैं के आईने कनवल के, आंख है कि मेघदूं की रानी। मैंने पूछा जाम से, फलक हो या जमीन, ऐसी मैं भी है कहीं? जाम ने कहा, मैं कशी की किस्म नहीं नहीं नहीं। खूबसूरती जो तो ने पाई, लट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूं तुझे में, आ कहूं खयाम की रुबाई। मैं जो पूछूं शायरों से, ऐसा दिल नशी कोई शेर है कहीं? शायर कहीं शायरी की किस्म नहीं नहीं नहीं। नरगिस के कहने पर निमल जाजुब के साथ शॉपिंग करी। जाजुब बड़ा खुश था इसके साथ जाने पर। गाड़ी में रोमानवी गाने लगाकर वो खुद भी गुनगुना रहा था। 2 बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तो डरती है या कदर नहीं मेरे प्यार की। निमल ने टेप बंद की। इसे क्यों बंद किया तुमने, या इसे बजने दो, अपना बाजा बंद करो। जाजुब इंसा, ए अच्छा तो यूं कहो ना, नागवार गुजर रहा है तुम्हारी समातों को मेरा बाजा। वो नाक सुकेड़े बाहर झांकने लगी। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो एक मांगने वाली इनके पास दे दे बाबू कुछ अल्लाह के नाम पर, सुबह से भूखी हूं कुछ नहीं खाया। जाजुब ने इसे 100 का नोट थमाया। वो नोट लेकर दुआएं देने लगी, अल्लाह तुझे हज कराए।
अल्लाह तेरी मुंती मुरादें पूरी करे और अल्लाह तुझे किसी का मोहताज ना करे। एक दुआ और करो मेरी शादी हो जाए। वो निमल की तरफ देखकर बोला। वो बोली अल्लाह करे जल्दी तेरी शादी हो जाए। साथ बैठी शहजादी से जाजुब ने 500 का नोट उसे दिया। वो खुशी से और दुआएं देने लगी, अल्लाह तुझे सवेने से बेटे से नवाजे। जाजुब ने फिर एक नोट निकाला। वो फिर से बोली, तूने मुझ भूखी का पेट भरा, अल्लाह तेरी सारी मुरादें भरे, तुझे 2 बेटों से नवाजे। जाजुब ने बुलंद आवाज में में कहा तो निमल जल भुन गई। मांगने वाली को देखकर बोली, बात सुनो, तुम ही कर लो इससे शादी, बेफिक्र रहो, कभी तुम्हारा पेट खाली नहीं छोड़ेगा। फकरन तो इसकी बात न समझ सकी, लेकिन जाजुब समझ चुका था। इसका कहकहा पूरी गाड़ी में गूंजा। निमल गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने नाई देखा ना था। गोद में पड़े पर्स से जाजुब की पटा शुरू कर दी। जाजुब ने एनस्टी एवी इससे पर्स छीना। बस करो, क्या कर रही हो, सब देख रही है यार। वो फकरन फिर बोली, ना मार मेरे बाबू को, ऐसा सूना मुंडा तुझे नहीं मिलेगा। सिग्नल खिल चुका था। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। जाजुब की एनस रुक ही नहीं रही थी और निमल का गुस्सा अपने उरूज पर था। अब अगर तुम दोबारा एनसी तो मैं चलती गाड़ी से उतर जानगी। जहर लग रही है तुम्हारी एनस उस वक्त मुझे। यार तुमने बात ही ऐसी कही कि कभी भी पेट खाली नहीं छोड़ोनेगा। अब एनसनी वाली बात पर एनसोहे भी नामे। खैर तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारी साथ क्रिकेट टीम नहीं बनानी। क्या मतलब? वो उसे घूरने लगी। मतलब ये कि प्यार तो बहुत होगा, लेकिन बच्चे इतने ज्यादा नहीं एवेंगे हमारे। मुझे लगता है सैंडल उतारना पड़ेगा अब। वो अनजान बनकर बोला, क्यों टूट गया है क्या? अभी तो नहीं टूटा, अलबत्ता तुम्हारी मज़्द किसी भी बकवास पर तुम्हारी ऊपर टूट सकता है। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, ए मेरे परवरदिगार, किस बागड़ बली पर दिल हार बैठा मैं। अर्जा की कुछ दिन बाद वापसी थी। नरगिस घर में नहीं थी। अर्जा ने मौका देखकर बात छेड़ी। निमल तुम्हारी पास सिर्फ यही रीजन है इससे शादी न करने का कि इसने तुम्हें किडनैप किया था। आको और रीजन भी है, उसने बता दिया तुम्हें सब। हाँ देखो निमल, मेरा पूरा बचपन इनके साथ गुजरा है। तुम नहीं जान सकती इनको इतना जितना मैं जानती हूँ। अभी तो ये तुम्हारी बात एनस में टाल रहा है, लेकिन ये याद रखना ये टलने वाला नहीं। ये जिस बात पर जिद पर इजा तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं समझा सकती। अगर वो तुम्हें तुम्हारी घर से उठा सकता है तो सोचो वो आगे किस हद तक जा सकता है। पहले तुम इसकी पसंद थी, अब इसकी मोहब्बत और जुनून बन चुकी हो। तुम डरा रही हो मेरी जाजुब से? नहीं यार, डरा नहीं रही। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हारी खातिर वो उन राहों से भी लूट आया है जिन राहों से मौत के अलावा छुटकारा मुमकिन नहीं था। तुम उसकी बचपन की दोस्त होना असली तुम्हें वकील बनाकर उसने भेजा है, लेकिन वो ये नहीं जानता इसकी वजह से जो वकालत दुनिया के कटहरे में खड़ी मैंने अकेले की वो किस कदर कठिन थी। वो तुम्हारा माजी था निमल। माजी में जीने वाले हाल में न सिर्फ ना खुश रहते हैं बल्कि अपना मुस्तकबिल भी बर्बाद कर लेते हैं। मैं जानती हूँ बहुत गलत किया इसने, लेकिन इसकी गलती के सबब आज तुम यहाँ अपनी ममता की चे में हो। अगर उसने तुम्हें अगवा किया तो तुम्हारी हिफाजत भी की, और शादी की ऑफर उसने इसी वक्त की थी तुमसे जब वो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था। निमल अर्जा को देखने लगी। वो गलत जरूर था मगर बदनीयत नहीं। तो क्या इसने मुझे अच्छी नियत से उठाया था? अर्जा सर पेट कर रह गई। तुम नहीं करोगी इससे शादी? नहीं। तो फिर सुन लो पागल लड़की, तुम्हारी शादी वो किसी और से भी नहीं होने देगा। मेरी रगों में भी इसी का खून है। शादी मेरी होगी और उसी के सामने होगी। तुम भी देख लेना और उसे कहना जो करना चाहता है कर गुजरे। मैं भी तो देखूं कितना दम है इसमें मज़ मुझे बर्बाद करने का। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी शादी जिससे हो रही थी तुम उसे चाहती थी और अब इसके ना मिलने पर बदला जाजुब से लेना चाहती हो? नहीं अर्जा, इस शख्स के साथ मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि इसके मिलने पर मुझे सारी कानत मिल जाती या ना मिलने पर दुनिया की हर खुशी रूठ जाती। अर्जा ने इसके ठंडे होते हाथ पकड़े। यहाँ देखो मेरी तरफ।
तुम्हारा ये इनकार मेरी वजह से तो नहीं? निमल इसकी आंखों में झांक कर बोली, हाँ शायद। अर्जा का दिल चाहा वो अपना सर फाड़ दे इसका। नम्मिन, तुम्हारी बेवकूफ़ी है ये और कुछ नहीं। मैं इसे चाहती जरूर हूं लेकिन मैंने इसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब कभी नहीं देखे, क्योंकि मैं जानती हूं हमारी दोस्ती इस दिवाजी रिश्ते में नहीं बदल सकती। तुम क्यों नहीं समझती हो इस बात को? इस दिन तुमने आंटी से भी जिक्र किया और जाजुब से भी। यार क्यों तुम मुझे कशकोल की तरह लिए इनके आगे फिर रही हो? मुझे रहम की भीख समझ रखा है तुमने। अर्जा बुरी तरह इस पर बिगड़ी। क्यों तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दोस्त तुम्हारा हमसफर बने? यार दोस्ती कब से रिश्तों की मोहताज होने लगी? नहीं चाहती ऐसा कुछ भी ना में ना जाजुब। ये महज तुम्हारा दिमागी फतूर है और कुछ नहीं। निमल ने शादी कली कही और हां कर दी थी। जल्द अज जल्द वो शादी करना चाहती थी। अर्जा वापस चली गई थी। निमल की शादी का सुनकर एनस्ता मुस्कुराता जाजुब बिल्कुल वीरानों की तरह खामोश हो गया था। अयाज भी एक थे। शादी की तैयारियां अपने जोरों शोर पर थीं और वो दिन आ भी गया जब इसकी शादी थी। जाजुब ये सब छोड़कर जाना चाहता था लेकिन निमल की कसम देने पर रुका कि वो इसे रुखसत होता अपनी आंखों से देखेगा। आज इसकी मेहंदी की रस्म इख्तिताम पजीर है तो पीले लिबास में वो मोतिये के फूलों से महकती जाजुब के कमरे में कैसी लग रही हूं मैं? जाजुब सिगरेट पी रहा था। क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने हो? नमक छिड़कने नहीं, तुम्हें एहसास दिलाने हो कि कितना अजियतनाक होता है वो लम्हा जब अपनी रूह किसी और के हैओहे में कब्ज होती गे देती है। जाजुब उसे देखने बना बोला, जा यहां से, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो इतना के। क्या के? बोलो क्या के? फिर एक बार लाल जोड़े में मुझे उठाने का इरादा है? जाजुब इसकी बात सुने बगैर बाहर जाने लगा तो निमल ने इसका रास्ता रोका। कहाँ चले? अर्जा ने तो तुम्हारी वकालत में बड़े बड़े दावे कई थे कि तुम किसी सूरत मुझे किसी और का होने नहीं दोगे। फिर अब कैसे हार मान ली? वो कुछ ना बोला, खामोशी से इसे देखता रहा। अब नहीं चियोगे मुझे, अब नहीं लोगे अपनी बाहों में। वो उसके बहुत करीब एओ। जाजुब पीछे हटा, निकलो यहां से बाहर। क्यों इतनी बुरी लग रही हूं मैं आज तुम है? वो मज़्द इसके करीब एओ। आज मेरे बोलने पर मेरे लबों पर अपनी महर सब्त नहीं करोगे। इसके इतने करीब आने पर जाजुब का सांस लेना मुहाल हो गया। वो उसे पीछे धकेल कर बोला, खुदा का वास्ता है चली जा यहां से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। क्या करोगे तुम? निमल की आंखों से आंसू बहने लगे। अभी कुछ दिन पहले तो बड़े चहक रही थे, बड़ा मजाक उड़ा रही थे मेरा। कहाँ तुम्हारी वो ठाठे मारती एनस? बदल गिना मातम में। निमल ने इसके सीने पर अपने हाथ रखे, अब बदला नहीं लोगे मुझसे? जाजुब ने इसे पीछे हटाया। क्या चाहती हो तुम? बेबस और लाचार देखना चाहती हूं तुम्हें और तुमसे तुम्हारा सब्र आजमाना चाहती हूं कि किस मकाम पर आकर लबरेज होगा। तुम ये सोच रही हो कि मैं गिड़गिड़ानेगा तमेरी आगे, अपनी मोहब्बत खैरात में मांगूंगा तुमसे, तमेरी कदमों में बैठ जानेगा या मर जानेगा तमेरी बगैर। तो तुमने गलत सोचा। भीख में मिलने वाली मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती और मैं अपना जीवन मोहब्बत के खैराती सिक्कों में तोल कर नहीं गुजार सकता। जा यहां से, मेरा और अपना तमाशा मत बना। मेरा तमाशा तो बन चुका जाजुब, अब बारी तुम्हारी है तमाशा बनने की। जाजुब ने इसे सुर्ख होती आंखों से देखा। कितने मजबूर होगी हो तुम? कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ असली के मैं अब तमेरी घर की इज्जत हूं। अगर आज यहां ना होती तो एक बार फिर तुमने मुझे बस चुप। वो दबी दबी आवाज में चलाया। तकलीफ हो रही है ना बहुत? कितना कठिन है ना ये लम्हा जब अपना आप किसी और के हाथों लुटता एवा के दे। जाजुब ने उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा लॉक किया। वो जाते जाते उसे कह गई, तुम कल भी बुज़दिल थे, आज भी बुज़दिल हो। वो उसके जाते ही सिगरेट पर सिगरेट पीने लगा। अजीब पागल लड़की है, मुझे अजियत देते एवी खुद भी अजियत से दो चार होती है।
पूरी रात जाजुब की कांटों पर गुजरी। इसकी सब्र की रगें चटकने लगीं। वो खुद पर काबू ना पा सका और शिद्दत गम से रो पड़ा। इसका एक एक आंसू लहू की तरह टपक रहा था। पूरी रात इसकी निमल से जुदा के अजाब में गुजरी। इस रात का एक एक पिल सदियों पर मोहित था। वो निमल के सामने नहीं टूटना चाहता था, लेकिन निमल के फैसले ने रेत के जर्रों की तरह इसे बखेर कर रख दिया था। लेकिन जाजुब को इतना अंदाजा हो गया था, अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना बिल्कुल जिंदगी से मौत के सफर जैसा था। वो दुल्हन बनी पार्लर में जाजुब का इंतजार कर रही थी। वो आया उसे लेने, उसने अंदर बुलवाया इसे। जाजुब की नजरें झुकी एव थीं। देखोगे नहीं मेरी तरफ? नहीं, एक नजर भी नहीं। नहीं, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा ना मुझे इस रूप में देखकर? तुमने चलना है या नहीं? जब तक तुम मुझे नजर भर कर देखोगे नहीं मैं नहीं जानेगी। ठीक है, खड़ी रहो यहीं। जाजुब जाने लगा। वो लपकी इसके पीछे तो शरारे में पाहे उलझ गया। वो मुंह के बिल गिरती, लेकिन बड़ी फुर्ती से जाजुब ने उसे थाम लिया। जाजुब की नजरें इसके सरापे पर जिमसी गई। इसे लगा इसकी धड़कन की तरह वक्त ठहर सा गया है। निमल का ये रूप तो इसने अपने लिए देखना था, लेकिन ये क्या निमल किसी और की होने जा रही थी, और वो कुछ भी ना कर सका। वक्त और हालात ने कितनी मजबूत बेड़ियां डाल दी थीं इसके कदमों में। इसकी अपनी ही मोहब्बत ने किस तरह इससे सारे इख्तियार छीन कर उसे बेइख्तियार कर दिया था। वो उसे शिद्दत से चाहकर भी कुछ ना कर सका। अपनी मोहब्बत निमल की जिद की भींत चढ़ा दी इसने। सच कहा था किसी ने कि मोहब्बत मरती नहीं मार देती है। जाजुब की आंखों में आंसू तैरने लगे, जिनको वो बड़ी खामोशी से हल्क में उतार गया। निमल इतने भारी शरारे से इसके पीछे, लेकिन वो सीढ़ियां नहीं उतर सकती थी। जाजुब, वो इसकी आवाज पर पलटा। मैं नहीं उतर सकती सीढ़ियां। जाजुब ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हारा हाथ थाम कर भी नहीं उतर सकती। जाजुब ने सिगरेट सुलगा। तो क्या अब गोद में उठाकर उतारो? निमल ने हाँ में सर हिलाया। फिर ताना मत देना मुझे कि लाल जोड़े में एक बार फिर तुम्हें उठा लिया मैंने। ये तो अब मेरी मर्जी है, तुम्हारी नहीं। जाजुब ने सिगरेट फेंक कर जमीन पर मसला, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियां उतरने लगा। एक पिल इसका दिल चाहा वो इसे यूं ही बाहों में लिए ले उड़े, लेकिन आज वक्त का तकाजा कुछ और था। जाजुब की बेबसी इसकी आंखों से छलक रही थी। निमल ने रास्ते में अपनी शादी का कार्ड इसकी गोद में रखा। नाम नहीं देखोगे मेरे साथ जड़ने वाले हमसफर का। जवाब में जाजुब खामोश रहा। वो गाने को शायराना अंदाज में बयान करने लगी। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता को और है, तो पसंद है किसी और की, तुझे देखता को और है। जाजुब ने एकदम ब्रेक लगा गाड़ी को, तो इसका सर गाड़ी की सीट के साथ जा लगा, क्योंकि वो जाजुब की पिछली सीट पर थी। तुमने सही सलामत घर पहुंचना है या नहीं? जाजुब की आवाज काफी ऊंची थी। क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? यही मतलब है कि जिंदा रहने का इरादा है या नहीं? क्यों, तुम मुझे जान से मारोगे? नहीं, सिर्फ तुम्हें नहीं, खुद को भी। निमल डर गई, क्योंकि इसके इरादे बड़े खतरनाक थे। अब अगर कुछ भी बोली तो मैंने गाड़ी सीधा इस बुर्ज से नीचे फेंक देनी है। निमल खामोश ही रही घर जाने तक, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत हार बैठा था। कुछ भी कर गुजरता वो उस वक्त। गाड़ी घर के अंदर रोकी जाजुब ने। सभी लड़कियों ने निमल को घेर लिया और अंदर ले गए। जाजुब ने गोद में पड़े कार्ड को देखा, फिर कपकपाते हाथों से उसे खोला। निमल के साथ जड़ा नाम देखकर इसके आंसू टपक कर निमल के नाम पर गिरने लगे। निमल का निकाह हो चुका था। वो फूलों से सजी सेज में बैठी शहजा लग रही थी। फूल इसकी गुलाबी रंगत के आगे फीके लग रही थे। वो बैठ बैठ कर थकी तो तकी से टेक लगाकर आंखें मूंद ले। कुछ देर बाद कमरे में कदमों की आवाज सुनकर सीधी होकर बैठी। अंदर आने वाला जाजुब था। इसकी भारी आवाज उसके कानों से टकरा। तुम सब ने मिलकर मुझे धोखे में रखा। अम्मी ने, तमेरी बाबा ने, तुमने।
मेरे जज्बात के साथ, मेरी मोहब्बत के साथ इतना बड़ा खेल खेला तुम सब ने। अगर ऐन निकाह से पहले मैं चला जाता यहाँ से तो क्या करते तुम सब? एक बार फिर रुसवा होती तुम, लेकिन इस बार अपनी गलती से होती। उस तरह का मजाक करते हैं किसी के साथ कि को जान की बाजी ही हार जाए। बहुत गलत किया तुम सब ने, इतना बड़ा ड्रामा रचाया मेरे साथ। तुम क्या समझती हो कि मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा तुमसे अचानक अपना निकाह होने पर? नहीं निमल बीबी, मैं तुम्हें अपने तसव्वुरात से उतार चुका हूं। तुम्हें किसी और कली मेरे दिलो दिमाग ने कबूल कर लिया था। अब इतनी जल्दी अपनी जात कली तुम्हें कबूल करना मेरे बस की बात नहीं। तुम मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता देखना चाहती थी ना? मेरे सब्र का पैमाना लबरेज तो नहीं हुआ, लेकिन मंजमंद जरूर हो चुका है। जाजुब की बातें सुनकर निमल की धड़कन कम होने लगी। वो उठा तो निमल भी खड़ी है। निमल, मोहब्बत में किसी को इतना नहीं आजमाना चाहे कि वो तुम्हारी इज़्माश पर पूरा उतरने के बजाय तुम्हें दिल से ही उतार दे। निमल का सर चकराने लगा। क्या सोचा था उसने और क्या हो गया? वो समझी थी जाजुब उसे पाकर खुशी से पागल हो जाएगा, लेकिन ये क्या, पागल तो अब वो उसे कर रहा था। वो चकरा कर बेड पर बैठी। इसके इंसुहे का फंदा इसके गले में फंस कर रह गया। वो रुंधी आवाज में बोली, जाजुब आई एम सॉरी। जाजुब पंजों के बिल इसके सामने बैठा। उसने रोते एवी जाजुब के कंधे पर सर रखा। इसका एक एक आंसू जाजुब को अपने दिल पर गिरता एवा महसूस एवा। ये सब ड्रामा करने की, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वो सीधी एव, मुझे इतनी अजियत देकर तुम्हें क्या मिला? सुकून या इस बदले का सिला? निमल ने ना में सर हिलाया। मैंने मना किया था उम्मी बाबा को, क्योंकि इतनी आसानी से मुयस्सर आने वाली मोहब्बत अपनी कदर जिल्द खो बैठती है। तुमने कभी अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं किया मुझसे। एक बार शाहजी से, दूसरी बार अर्जा के मुंह से सुना। मैं चाहती थी तुम टूटकर मुझसे खुद अपनी मोहब्बत का इकरार करो, लेकिन ऐसा नहीं किया तुमने। बस खामोशी अख्तियार कर ली। मैं इस बात पर हैरत ज़दा थी कि मुझे इतनी आसानी से किसी और का होने दिया तुमने। ना को जिद की, ना को जबरदस्ती की, ना को शोर, ना एनिगामा, ना अपने हक में कुछ कहा। बस सब्र कर लिया तुमने। बस इतनी सी मोहब्बत थी तुम्हें मुझसे कि मेरे इनकार से अपने इकरार तक ना पहुंच सके। इतना हौसला था तुम्हारी मोहब्बत में कि मुझे किसी और का होता देखते रहते। कैसी मोहब्बत है जाजुब तुम्हारी, जिसमें चाहत है लेकिन चाहे जाने का एहसास ही नहीं। ये मोहब्बत नहीं तुम्हारी अना है। तमेरी अंदर इस अना के बुत को तोड़ना था मुझे। तमेरी अंदर वो दर्द, वो एहसास जगाने की खातिर मैंने ये सब किया, लेकिन ये क्या कि तुमने मुझे दिल से ही उतार दिया। जाजुब, मोहब्बत के रंग इतने कच्चे नहीं होते। ये मोहब्बत एक बार जिसे अपने रंग में रंग ले फिर किसी और रंग में रंगने नहीं देती। जाजुब एक टुक सांस रोके उसे देखता रहा, फिर खड़ा एवा। जाजुब, मोहब्बत इकरार मांगती है, अपने चाहे जाने का खराज मांगती है, लेकिन तुमने तो मोहब्बत के इकरार से पहले ही इनकार कर दिया कि तमेरी लिए मुझे कबूल करना मुश्किल है। तो क्या जो मेरे साथ है वह तुम्हें कबूल करना मेरे लिए आसान था? वो उसके रूबरू खड़ी है। इसके बहते आंसू जाजुब ने अपनी मुट्ठी में लिए। मेरी इतनी सी बात बुरी लग तुम्हें? क्या तुम ही झूठ बोलकर मुझे तड़पा सकती हो? मैं एक झूठ बोलकर नहीं तड़पा सकता। तुमने तो ऐमशा तड़पाया ही है जाजुब मुझे। जाजुब ने इसके आंसू अपनी उंगली की पूरों में जज्ब कई और उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। निमल, पिल तड़पा में भी बहुत हूं। मोहब्बत की तड़प कितनी अजियतनाक होती है शायद तुम नहीं जानती। 2 साल इस अजियत के अंगारों पर चला हूं मैं, जहां मेरे पाहे ही नहीं मेरा दिल भी लहूलुहान एवा है। फिर तुम्हें पाकर भी खो देना मेरे लिए सहना कैसे मुमकिन था? मरता तो नहीं मैं, लेकिन जीने के काबिल नहीं रहता तमेरी बगैर। जाजुब के आंसू आंखों का बंद तोड़कर बाहर बह निकले। दिल ओ जान से चाहता हूं मैं तुम्हें, तुमसे जुदा मैं नहीं रह सकता। कल मुझे इस बात का अंदाजा एवा कि मोहब्बत में जुदा बिल्कुल मौत जैसी होती है। इंसान की रग रग से रूह निकलती एवं महसूस होती है। जाजुब ने इसे गिले से लगाया, मुझसे खुद को कभी दूर मत करना, नहीं रह पानीगा मैं तमेरी बना।
जाजुब की बाहों में आते ही निमल को लगा पूरी कानत इसकी बाहों में सिमट के है। नरगिस बहुत खुश थी कि राबा और इज़्द पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन एक लिहाज से वो परेशान भी थी कि इज़्द का क्या रद्द अमल होगा। जाजुब और अयाज को देखकर इनका जहाज लैंड करने वाला था। नरगिस के साथ निमल भी तैयार हो जाने के लिए, लेकिन नरगिस ने मना कर दिया कि वो घर में इसके आने का इंतजाम करे अच्छा सा। नरगिस अल्फार पोर्ट पर खड़ी इनको ढूंढ रही थी। इज़्द ने पीछे से आकर इनको घेर लिया। नरगिस ने दोनों को गिले से लगाकर इनका माथा चूमा। रास्ते में नरगिस ने बड़े आराम और सहूलत से जाजुब का और उसकी शादी का बताया, लेकिन ये जिक्र न किया कि किसके साथ एओ है। इस जाजुब की शादी का सुनकर काफी हैरान एवा। आखिर था तो वो इसका इसका खून, कब तलक वो इससे मुंह फेरता, इसके वजूद से इनकार करता, और अब उसके सुधर जाने के बाद इसकी नफरत का कोई जवाज ही नहीं बनता था। उसने लूट कर आना ही था एक ना एक दिन। नरगिस की हर बात इसने सर झुकाकर तस्लीम की। गाड़ी घर के पास रुकी। राबा अपने बेटे से मिलने के लिए बेकरार थी। सबसे पहले जल्दी से वो घर में दाखिल हुई। इज़्द और नरगिस इसके पीछे थे। वो जैसे ही लानिज में दाखिल हुई तो निमल के साथ जाजुब को और फिर जाजुब की गोद में अपना बेटा देखकर इसके कदम वहीं रुक गई। ये तो वही शख्स था जो निमल को उठा ले गया था। राबा ने एक झलक में ही उसे पहचान लिया, लेकिन निमल यहाँ इसके साथ क्या कर रही थी? राबा ये सब देखकर इतनी शाकिडियो के अपने कदमों पर खड़ी ना रह सकी। सच्ची कहानी बदबख्त। किस्त नंबर 22। निमल यहाँ इसके साथ क्या कर रही थी? राबा ये सब देखकर इतनी शाकिडियो के अपने कदमों पर खड़ी ना रह सकी। निमल भी अपनी जगह बिल्कुल साकित हो गई। नरगिस ने फर्श पर पड़ी राबा को देखा, जिसकी नाक से कतरा कतरा खून बह रहा था। सभी परेशानी से राबा के गिर्द जमा एवी। नरगिस ने इसका सर अपनी गोद में रखा। राबा मेरी बच्ची क्या अवा? निमल माँ के पास उम्मी ये राबा नहीं है, ये तो बख्ती है। इज़्द ने हैरानी से निमल को देखा। अब जानती है इसे? नरगिस रोते एवी बोली, तुम ये सब बातें बाद में करना, पहले इसे एविस्पटल लेकर तो जा। इज़्द ने इसे उठाया और एविस्पटल ले गई। निमल के मुंह से बख्ती का नाम सुनकर जाजुब भी परेशान हो गया कि वो जानती है कि निमल को अगवा करने वाला वही था। बख्ती के बारे में निमल जाजुब को बता चुकी थी और जाजुब ने वादा किया था इससे कि वो इसे तलाश करने में इसकी मदद करेगा। लेकिन ये क्या हो गया कि जिसे वो ढूंढना चाह रही थे वो उन्हीं के घर की फर्द थी। जाजुब इस सिचुएशन से बहुत पजल हो रहा था कि अगर उसने एविश में आते ही सबके सामने सच बोल दिया तो क्या होगा। निमल बहुत रो रही थी। राबा का नर्वस ब्रेकडाउन एवा था। निमल रोते रोते इसकी हकीकत बयान करने लगी। उम्मी ये बख्ती है मेरी दोस्त, उसे सब बदबख्त कहते थे, बिल्कुल लावारिस, बेआसरा, बेघर, लाचार है ये। अम्मी बहुत तकलीफ दे थी इसकी जिंदगी गोपाल चाचा के यहाँ। लेकिन उम्मी आपको कैसे मिली ये? इज़्द सब सुन रहा था। नरगिस थोड़ी घबरा गई। बेटा मुझे ये पार्लर में मिली थी, पसंद अग थी, मैंने इज़्द के साथ इसका निकाह कर दिया। पार्लर? कौन सा पार्लर? अम्मी ये तो कराची में थी, मेरे घर के साथ ही गोपाल चाचा का घर था। नरगिस आंखें चुराने लगी। इज़्द माँ के झूठ पर उनको देखता रह गया। अम्मी बहुत जालिम थी, देवी आंटी बहुत जालिम। अम्मी मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा कि बख्ती मेरे सामने है। निमल का ज़ारो-क़तार रोना नरगिस से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उम्मी इसे कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक हो जाएगी ना। इज़्द वहां से चला गया। उम्मी अब नहीं जानती कुछ भी। मेरी जान से प्यारी दोस्त है वो, मेरे साथ एनस्त थी जब तो इसकी एनस में भी दर्द खनकता था। इसके दर्द, इसकी अजियतें मैं नहीं भूल सकती। अम्मी मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी दुआ उस तरह कबूल होगी कि मैं यकीन नहीं कर पा रही। मेरी यही ख्वाहिश थी कि जहां मेरी शादी हो मैं उसे भी बया कर साथ ले जानेगी। लेकिन मेरी दुआ, मेरी ख्वाहिश अल्लाह ताला ने मेरी कोशिश से पहले ही कबूल कर ली। मेरी जान, अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है।
कब कौन सा हादसा कौन सी नेकी कहाँ जाकर हमारी किस ख्वाहिश को पूरा करेगी रब ही जानता है। हम तो बस मांगते हैं, इससे नवाजना इसका काम है। जैसे और जहां वो बेहतर समझे वही मिलाता भी है इंसान को और जुदा भी करता है। वो मर कर जुदा होते हैं और को जीते जी मिल नहीं पाते, सब किस्मत के खेल है। इंसान अपनी तरफ से पूरी तदबीरें करता है, बहुत प्लान बनाता है, बहुत कुछ सोचता है, लेकिन अक्सर किस्मत इसके आड़े आ जाती है। कभी मौत का पैगाम लिए, कभी नाकामी का तो कभी कामयाबी का, लेकिन साथ वो बस इसी का देती है जो सब्र से इसके फैसले को कबूल कर ले। राबा को एविश आ चुका था, लेकिन डॉक्टर ने एक बंदे को जाने की इजाजत दी। निमल तड़प कर भागती एओ अंदर गई। राबा हैरत से बस उसे तकने लगी। निमल ने भागकर उसे सीने से लगाया। राबा अब भी पत्थर का बुत बनी थी। निमल ने दीवानों की तरह इसे चूमा। बख्ती ने इसके चेहरे को उस तरह छुआ जैसे इसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। निमल ने इसके हाथ चूमे। निमल, इसके मुंह से बस एक लफ्ज निकला, हाँ मेरी जान में निमल, तुम्हारी निमल, तुम्हारी दोस्त। राबा ने पूरी कुव्वत से इसके गिले लगी और इतना रो जैसे सावन बरसता है। निमल ने इसे चुप करवाया। वो बार बार निमल को छूती कि यह हकीकत है या ख्वाब, फिर रो देती। कुछ संभल जाने के बाद वो बोली, तमेरी साथ वो। निमल ने इसके चेहरे से आंसू पोंछे। हाँ वो वही है, लेकिन अब मेरा शौहर है और तुम्हारा जेठ इज्द का बड़ाबे है वो। राबा को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे भी हो सकता है। निमल ने इसे समझाया कि वो इसके माजी का जिक्र किसी ने करे। मुसलसल रोने से इसकी तबीयत फिर बिगड़ी। वो रुक रुक कर सांस लेने लगी। निमल को डॉक्टर्स ने बाहर भेजा पर दावा ने इसे जाने ना दिया कि इसी को देखकर तो इसकी सांसें बहाल एओ थीं। नरगिस एविस्पटल से जाजुब के साथ घरे। इज्द के जाने पर काफी गुस्सा था इसे। वो उसके कमरे में एक जहां वो बेड से सर टाए जमीन पर बैठा एवा था। ये क्या तरीका है तुम्हारा? उस तरह सबको बना बताए घर क्यों ए तुम? वो बना को जवाब दी घर से जाने लगा। वो उसके पीछे ए रुको इज्द, कहाँ जा रही हो? वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा और एकदम अयाज को सामने देखकर रुक गया। नरगिस जल्दी से इसके सामने, ये यहाँ क्या कर रही है? नरगिस ने इसे अंदर घसीटा। वो चलाकर बोला, पहले मुझे ये बता है ये यहाँ मेरे घर में क्या कर रही है? अयाज को नहीं मालूम था इसे देखकर इज्द का इतना शदीद रद्द अमल होगा। जाजुब भी इसकी आवाज पर बाहर आया। मम्मी में लंदन किया गया, अपने मेरे घर के दरवाजे उन लोगों पर भी खोल दी जो किसी सूरत मुआफी के काबिल नहीं थे। इसके चलाने पर नरगिस ने इसे थप्पड़ दे मारा। बस कर दो इज्द, बसस। मेरा शौहर है वो, मेरी बेटी का बाप। तमेरी लिए भी वो इतना ही काबिल एहतराम है जितना कि मैं कैसे करूं इनका एहतराम जिनको रिश्तों की अहमियत का कोई एहसास नहीं, जिसने अपनी बीवी का, इसकी ममता का एहतराम नहीं किया। ऐसे बेहिस लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने घर में, जिन्होंने कल अपनी शफकत से न सिर्फ हमें बल्कि आपको भी महरूम रखा और आपकी बेटी से ममता का साया भी छीन लिया। इनके होते एवी अपने सारी जिंदगी बेवा की तरह गुजारी है। नरगिस ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरी जान, बात सुनो मेरी। अपनी बेटी के सदक़े मैंने उसे मुआफ किया। मेरा मुजरिम है ये, तुम्हारा नहीं। इज्द ने मां को देखा। लूट ये आपकी बेटी लेकर और अपनी 24 साला अजियत 24 सेकंड्स में मुआफ कर दी। उम्मी, आपके जैसा ज़र्फ मुझ में नहीं। इज्द, बहुत मुश्किलों से, बहुत इंतजार के बाद मुझे मेरी बेटी मिली है। मैं इसे खोना नहीं चाहती दोबारा। वो उनके बगैर नहीं रह सकती। जान है अपने बाप में इसकी, और तमेरी बे की जान मेरी बेटी में है। बीवी है अब वो इसकी। इस पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े ये बात सुनकर के निमल जाजुब की बीवी बनी है। वो पागल सा हो गया ये बात सुनकर। वाह उम्मी, वाह, अपने चहीते कली अपनी पाकदामन बेटी का इंतखाब किया, और मेरे लिए वो लावारिस दो लड़की मिली थी आपको, जिसको ना अपने बाप का पता है ना अपने। नरगिस ने इसके मुंह पर हाथ रखा। चुप कर जा इज्द, चुप कर जा, खुदा का वास्ता है। इज्द सारी बात जानकर बुरी तरह रोया। जाजुब ने इसे संभाला
पर वो अपने आप में नहीं था। मैं आपकी ये ज्यादती कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरे साथ बिल्कुल ऐसा किया जैसे मैं भी किसी कचरे के ढेर से उठाया एवा लावारिस और मजबूर बच्चा था। मीम नरगिस अपनी सफा देने लगी, नहीं इज़्द ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मेरी बात तो सुनो। अब क्या रह गया है उम्मी सुनने को। वो बच्चों की तरह रो रहा था। अपने मुझसे माँ होने का मान भी छीन लिया। नरगिस की जान थी इसमें, वो यूं ही रोता एवा घर से जाने लगा। रे आप अपने इन सारे प्यारे रिश्तों के साथ, मेरी यहाँ को जगह नहीं। इसकी बात सुनकर नरगिस बाआवाज रो। जाजुब ने नरगिस को अपने साथ लगाया। वो भी इसकी तरह पागल हो रही थी। रोको उसे जाजुब, रोक लो वरना मैं मर जानेगी। अयाज ने नरगिस को संभाला, जा जाजुब बेटा उसे रोको। जाजुब भागा इसके पीछे, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। दिल्ली तक जाजुब नंगे पाहे भागा इसके पीछे, लेकिन इसने पलट कर पीछे देखा तक नहीं। वो वापस आया घर तो नरगिस की हालत काफी खराब थी। जाजुब ला इसे, मैं इसके पीर पड़ जानगी पर मेरे सामने तोला इसे। माँ को उस तरह रोता देखकर जाजुब से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उम्मी इजागा वो कहाँ जा सकता है, नहीं रह सकता वो आपके बगैर भी। रोती सिसकती एवं नरगिस को जाजुब ने गिले से लगा रखा और तसल्ली देता रहा। पूरा दिन पूरी रात बैठ गिथी पर इज़्द का कुछ इल्म नहीं था वो कहाँ है। नरगिस को गश पर गश आ रहे थे कि वो गया कहाँ है। वो उसे ढूंढने भी निकला पर वापस लौट आया। क्या हो गया था, पल भर में एनस्ता मुस्कुराता घर दर्द और तकलीफ की आंखों में डूब रहा था। राबा घर आ चुकी थी, इसकी नजरें मुसलसल इज़्द को तलाश रही थी। इज़्द की घर से जाने वाली बात इससे चेपा एओ थी सबने, क्योंकि ज़हनी तौर पर वो इस सदमे को सहने के काबिल न थी। नरगिस की हालत देखी नहीं जा रही थी, ना वो खाना खा रही थी ना कुछ बोल रही थी। इज़्द 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 बस एक ही नाम था इसके लबों पर। तीसरी रात भी एक थी, इज़्द नहीं आया था लौट कर। खाना न खाने की वजह से इनके जिस्म में चलने की भी सकत नहीं थी। नरगिस को हॉस्पिटलिस्ट करना पड़ा। राबा भी जान चुकी थी ये एक और अजियत थी। निमल के मिलने की खुशी सब गारत हो गई थी इज़्द के लापता होने पर। रात 12 बजे के करीब जाजुब के कुछ बंदों ने इसे इज़्द का बताया कि वो फला होटल में है। जाजुब पहुंचा वहां इसके पास। यार तुम समझते क्या हो खुद को। अयाज अंकल को तुम रिश्तों की पासदारी का ताना दे रही थे, लेकिन खुद पर गौर करो, खुद क्या कर रही हो तुम। सारी जिंदगी तुमने हम सब से नफरत की है, अब अपने अलावा किसी और को भी इंसान समझो। गलतियां सबसे होती हैं, तुमको फरिश्ता नहीं हो, इंसान हो हमारी तरह। हमारी खता है पर खुदा बनकर इतनी बड़ी सजा है ना दो हमें कि कल को अपनी किसी खता पर मुआफी का हर हक खो बैठो। जाकर देखो इस माँ की तरफ जिसने हमें पालने की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सुहागन होकर भी वो हमारी खातिर बेवा बनी रही, माँ होकर भी अपनी बेटी की ममता हम दोनों बेयों पर लुटाती रही। आज अगर इसका सुहाग लूट आया है, इसकी जीने की आरज़ू साथ लाया है, तो तुम कौन होते हो उनसे ये सारे हक छीनने वाले। गुनहगार तो हम भी हैं इस मासूम निमल के, जो हमारी वजह से अपनी माँ से एमशा कली दूर हो गई थी, और इस माँ के भी जो उस वक्त तमेरी गम में निढाल अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। इज़्द हाथ जोड़ता हूँ तमेरी आगे, नफरत की आग में ना खुद जलो ना हमें मज़्द जला, चिल्लू मेरे साथ। जाजुब ने इसका हाथ पकड़ा, वो अब भी रो रहा था। जाजुब ने इसे पूरी जज्बातियत और कुव्वत से गिले लगाया। चल मेरे यार चल, अब बाहें खोल और कबूल कर सबको खुशियों के साथ, जो उस वक्त सिर्फ तेरी कमी से मातमी लिबास ओढ़े एवी है। इज़्द चल पड़ा और सीधा अस्पताल में नरगिस के कदमों में आ गिरा। नरगिस ने आंखें खोली, आ गया मेरा बच्चा मेरी जान। नरगिस उठी और अपने हाथ जोड़े, इसके आगे मुआफ कर दो मुझे। इज़्द ने इनके हाथ चूमे, फिर काफी देर तलक इनके सीने से लगा रहा। अयाज ने भी इज़्द से मुआफी मांगी। सबको मुआफी मिल थी सवा बख्ती के। बख्ती के बख्तों में अब भी काफी बदबख्तियां थीं जिनसे वो बिल्कुल अनजान थी। नरगिस ने बड़ी मुश्किल से समझाया था इज़्द को कि वो राबा के साथ कम अज कम उन सब के सामने बुरे सलूक से ना पेश।
इज़्ज़त ये लाजिम तो नहीं कि हम एक दूसरे को खुश करने की ही कोशिश करें, बल्कि ये काफ़ी है कि एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। ये ज़रूरी नहीं कि दूसरों की ख़ताओं पर हम उन्हें सज़ा दें, लेकिन ये ज़रूरी है कि अपने अयूब पर नज़र रखते हुए हम अपनी इस्लाह करें। ये भी मेरी जान ज़रूरी नहीं कि हम किसी से मोहब्बत करें, इतना भी काफ़ी है कि हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने। या किसी को अपनी नफ़रत की आग में इतना न जलाओ कि हमारे अपने अंदर इंसानियत जल कर राख हो जाए। बेटा, गलती इंसान की फितरत है। आदम की गफलत असल में अल्लाह उज़्ज़ वजल की मसलहत थी, ताकि इंसान को ये सिखाया जाए कि गलती फितरत है, तौबा कुदरत है और मुआफ़ी रहमत है। जब अल्लाह मुआफ़ कर सकता है तो हम इंसान क्या चीज़ है। वो माँ की तरफ देख कर बोला, अल्लाह मुआफ़ कर देता है, लेकिन हम इंसानों के लिए मुआफ़ करना मुश्किल है बहुत। अम्मी, जिन गढ़ों में लोग गिरते हैं ना वो इनके अपने खोदे एवी होते हैं। अल्लाह इंसान कली गड़े नहीं खोदता। हर इंसान के आगे इसका अपना क्या आता है। अच्छा, तो फिर तुमने ऐसा क्या गलत किया जो राबा तुम्हें मिली, क्या वो भी तुम्हारी ही किसी गुनाह की सजा है। नरगिस का अंदाज बड़ा जारहाना था। अम्मी, अगर वो मेरे किसी गुनाह की सजा होती तो मैं भगत लेता, लेकिन नाकर्दा गन्नाहों की सजा कट्टी नहीं काट कर रख देती है। इज़्ज़त के लहजे से उठता दर्द नरगिस के दिल में उतरा। अम्मी, निमल मेरी दूध शरीक बहन है। चलो मान लिया कि निमल की शादी मुझसे नहीं हो सकती थी, लेकिन जाजुब से भी तो आप राबा की शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं कि अपने, क्योंकि आपको जाजुब मुझसे ज्यादा अजीज है। नरगिस इसकी शिकायत करती आंखों में जैन। बेटा, अव्वल तो मैं कौन होती हूँ किसी के जोड़े बनाने वाली। ये काम तो मेरे रब के है जो आसमानों पर फैसला कई बैठा है कि किसने किसके निकाह में रहना है। रही बात अजीज होने की तो हाँ, जाजुब मेरी जान है, लेकिन तुम। नरगिस रुकी, फिर सांस खींचकर बोली, लेकिन तुम मेरा मान मेरा ईमान हो, इसलिए तुम्हें चना मैंने राबा कली। इज़्ज़त को नरगिस की आखिरी बात ने लाजवाब कर दिया था। इसके बाद इसने कभी शिकायत नहीं की नरगिस से इनके फैसले की, लेकिन राबा को उसने किसी तौर कबूल न किया। राबा निमल के मिलने पर बहुत खुश थी, लेकिन इज़्ज़त की नफरत की आग अक्सर उसकी आंखों में सुलगती एवं महसूस होती। निमल और राबा एक साथ लानिज में बैठी बातें कर रही थी। तुमने नाम क्यों बदला अपना? इस नाम के साथ एमशा मेरी बदबख्ती साथ साथ रहती है, असली बदल दिया, लेकिन नाम बदल कर भी अपनी बदबख्ती नहीं बदल सकी मैं। लेकिन तुम लाहौर और ये पार्लर तक कैसे पहुंची? और जियान इज़्ज़त का बेटा नहीं तो फिर किसका है? बख्ती नरगिस के रोकने पर उसे सच्चा से आगाह न कर सकी। गोपाल चाचा ने मेरी शादी की थी अपने किसी दोस्त के बेटे अफान के साथ। इसके घर वालों ने भी कबूल न किया मुझे देवी अंटी की तरह। तलाक देकर वो मुझे यहाँ लाहौर छोड़ गया था। जहाँ मुझे ज़ारा आपी मिली उन्होंने साथ रख लिया, बस फिर वहाँ से किस्मत मुझे यहाँ ले। निमल इसका चेहरा बगौर देखने लगी, लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है। राबा का दिल जोर से धड़का। क्या सुना है तुमने? मुझे जन्नत अम्मा ने बताया था कि तुम वहां से भागी हो किसी के साथ। निमल की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि राबा अपने कदमों में किसी का साया देखकर फौरन उठी। सामने इज़्ज़त था जो हिकारत भरी नजरों से इसे देख रहा था। राबा ने बमुश्किल हल्क से थोक निगला। वो इन दोनों पर एक निगाह डालकर खामोशी से अंदर चल दिया। इन दोनों की बात अधूरी रह गई। निमल किचन में बर्तन धो रही थी जब जाजुब ने इसे अकेले देखकर बाहों में घेरा। वो दोनों आपस में किसी बात मुस्करा रही थी। सीढ़ियों से उतरते इज़्ज़त ने इनका प्यार देखा तो एक अजब सी टीस इसके दिल में उठी। वो उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस चला गया। अम्मी, आपका मान आपका ईमान था। मैं अपनी जान बचा ली आपने, और अपने ईमान को बेईमानों के हवाले कर दिया। बहुत डिस्टर्ब था वो। राबा का इंतजार कर रहा था कि कब राबा कमरे में आएगी। राबा की इस खौफ से एंथी नहीं हो रही थी कि वो कैसे जाती इज़्ज़त के सामने, क्योंकि वो निमल की बात सुन चुका था। नरगिस ने जियान को सुला लिया था अपने पास। इसके पास अब को बहाना भी नहीं था। मजबूरन उसे जाना पड़ा कमरे में। इस जागा एवा था। इसे जागता देखकर राबा सहमी सहमी नीचे बिस्तर बिछाने लगी अपना। इज़्ज़त इसके सामने खड़ा एवा। कितना और झूठ बोलोगी सबके साथ? कुकक्की कौन सा झूठ? मुझे पहले दिन से शक था तुम पर कि तुम घर से भागी एवं लड़की हो। राबा ने नजरें झुका ले।
झूठ सुना अपने? हाँ, झूठ ही तो सुन रही हैं हम सब अब तक तमेरी मना से, कि सच बोलने की एम्प तुम में है ही नहीं। वो उसे जबड़ों से पकड़कर बोला, कितना मकरू चेहरा छुपा है न तमेरी इस खूबसूरत चेहरे के पीछे। छोड़ी, दर्द हो रहा है मुझे। इज़्द ने मस्त जोर से उसे जकड़ा, दिल चाहता है जान से मार दूं मैं तुम्हें। हाँ तो मार दें एक ही बार, इस बार बार के मरने से तो बेहतर है ना। इज़्द ने झटका देकर उसे छोड़ा तो वो सोफे पर जा गिरी। तमेरी जैसे गंद में हाथ डालकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं कर सकता। इज़्द का एक एक लफ्ज़ तीर की तरह इसके दिल में पीवस्त होकर रह गया। अगर एक आंसू भी यहाँ बहाया तुमने तो अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। राबा ने इसके खौफ से सारे आंसू हल्क में उतारे जो इसका हल्क चीर कर उतरे और उसके दिल में घटी घटी सांसों की तरह घट घट कर बैन करने लगे कि रेजा रेजा दिन गुजरता है, धज्जी धज्जी रात मलती है। जिसका जितना ज़र्फ है इतनी ही औकात मलती है मुझे। वो अपनी बैन करती दिल की आवाज़ों पर खुद थपथपाने लगी। इज़्द को हमदानी ने ऑफिस में बुलवाया। इज़्द बेटा, तुम्हारी परफॉर्मेंस पर, तुम्हारी ईमानदारी पर तो मैं पहले दिन से ईमान ले आया था। अब एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। कराची वाली फैक्ट्री में सत्तार ग्रुप ऑफ कंपनी हमारे साथ अपना बिजनेस मर्ज करना चाह रही है और इतने नाजुक मामलात में किसी और के हिनड ओवर नहीं कर सकता। वो ये तो बड़ी अच्छी बात है, सत्तार ग्रुप की गुडविल बहुत अच्छी है बिजनेस में। हमदानी साहिब इसकी तरफ देखकर मुस्कुरी। तुम लकी मैन हो, मेरे तमेरी हवाले करता हूँ कराची की फैक्ट्री। मैं कल ही बोर्ड मीटिंग करता हूँ। तुम चरमे की सीट संभालो फिर, और उसी महीने में मेरे दोनों बच्चे अली और माया भी तुम जवान कर लेंगे। ओके सर। इज़्द उनसे हाथ मिलाकर उठा। जल्दी से बोरिया बिस्तर बांधो, फिर कराची की तैयारी करो। मैं वहां घर अरेंज करवा दूंगा। क्लिफ्टन साड ठीक रहेगा ना? कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया करीब है वहां से। जैसे आप बेहतर समझी सर। ओके बेटा, फी अमान उल्लाह। फी अमान उल्लाह सर। इज़्द ने कराची जाना था। एक बार फिर नरगिस के साथ इसकी बहस छिड़ गई। वो किसी सूरत ताबा को साथ ले जाने पर राजी नहीं था। राबा निमल की खोजती आंखों का सामना नहीं कर सकती थी और जाजुब से भी कतराती थी, क्योंकि जाजुब का पहला रूप वो बेलाए नहीं भूलती थी जिसने गिन पॉइंट पर निमल को रखा था, और आज वो इसी की जान थी। नरगिस से अच्छी खासी बहस करके वो तनतनाता एवा अपने कमरे में आया। राबा उसकी पैकिंग कर चुकी थी। दूसरा टीची देखकर बोला, ये किस लिए? ये मेरा है। किस खुशी में तुमने अपना सामान पैक किया है? वो कुछ ना बोली। क्या दीदे फाड़ कर देख रही हो मुझे तुम? वो इज़्द के कदमों में जा बैठी। क्या कर रही हो? उठो, छोड़ो मेरे पास। इज़्द मुझे यहाँ छोड़कर मत जाए, अपने साथ ले जाए। मैं पड़ी रहूंगी किसी कोने में, मांस की हैसियत से रह लूंगी। आपके सामने तक नहीं, प्लीज मुझे ले जाए यहाँ से प्लीज। इज़्द बेड पर बैठा। क्यों, यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं नहीं बता सकती, बस अब साथ ले जाए मुझे। पहली बार उसने इज़्द से को डिमांड की थी, वो भी कदमों में पड़कर। सामना नहीं कर सकती निमल का कि वो तुम्हारी सच्चा जानती है, या इस झूठ से छुटकारा चाहती हो जो तुमने उम्मी से बोला था। वो उसके पैरों में सर रख कर बोली, दोनों से, अपने झूठ से भी और सच से भी। इसके आंसू इज़्द के पैरों पर गिरे। उसने पाहे पीछे खींचे। नरगिस वैसे भी जाने ना देती असको। अगर वो अकेला जाता तो नरगिस उसे साथ लिए कराची पहुंच जाती, और अब इसकी मिन्नत समाजत देखकर इज़्द राजी हो गया। रताबा, बात सुनो। हाँ बोलो। इज़्द ने तुम्हें बीवी की हैसियत से तस्लीम नहीं किया ना? राबा ने ठंडी आह भरी। निमल मीर जैसे लोगों को मुआशरा इंसान ही नहीं मानता, तुम कबूल करने की बात करती हो? क्या मतलब तुम इसी तरह इज़्द के साथ कांटों की सेज पर जिंदगी गुजार दोगी? वो घास पर बैठी औढ़ी तिरछी लेकर जमीन पर लगाने लगी। निमल, मेरे जैसी लड़की कली सेज सज यही काफी है। जरूरी तो नहीं था कि सेज फूलों की ही होती, और यार फूलों की महक तो चंद लम्हात की होती है। वफा तो कांटों में होती है जो दागदार दामन को भी पास से गुजरने पर थाम लेते हैं।
और अक्सर छेबने पर भी तादेर अपना असर जिस्म में उतारते रहते हैं। निमल ताबा को हसरत से देखने लगी, कहाँ से लाहो इतनी बर्दाश्त, इतनी एमत, इतना हौसला। यार मेरे जैसे लावारिस लोग नासूर की तरह होते हैं, नाकाबिल बर्दाश्त, लेकिन हमें जीने के लिए सब बर्दाश्त करना पड़ता है, ढेट बनकर जीना पड़ता है, क्योंकि खुदकशी हराम है। अगर दाश में हराम की जिनी हो जिंदगी भी हराम गुजरे तो क्या मौत को भी खुद पर हराम कर लूं। ऐसी बातें ना करो, मेरा दिल डूब सा जाता है। राबा मुस्कुरा, तो मत किया करो ना ऐसे सवाल, मुझसे जानती हो मेरे पास तलखियों के सिवा कुछ भी नहीं। नरगिस भी शामिल एओ इनके साथ। राबा बेटा उदास मत एवा करो, अल्लाह पर तवक्कल करना सीखो। दुआ करती हो तो इस यकीन के साथ करो वो कबूल करेगा। देर से ही सही लेकिन दुआ रद्द नहीं होती। वो सर झुकाए बोली, उम्मी में तो खुद दुनिया कली रद्दी हूं, दुआ भी रद्द एओ तो क्या फर्क पड़ता है। ना मेरी बच्ची ना ऐसा नहीं कहते। कभी जिंदगी भर की रियाजीत रायगा जाती है और कभी लम्हे सदियों को जन्म दे दिया करते हैं। कभी समंदर की मौजें साहिल से जिंदगी को छीन कर ले जाती हैं और कभी मछली पैगंबर को साहिल पर जिंदा उगा देती है। बाज़ औक़ात अहले इल्म की हजारों दलीलें पत्थर दौर के इंसान को गारों से नहीं निकाल सकती और कभी किसी फकीर की एक सदा अफ़कार की बुनियाद हिला देती है। मालिक कायनात के भी अपने ही रंग और अपने ही मामलात हैं। वो पहले ज़र्फ़ अता फरमाता है, फिर सोच अता करता है। शायद इसीलिए जो बोलते हैं वो जानते नहीं और जो जानते हैं वो बोलते नहीं। शायद सवाल शोर और हंगामा है और खामोशी इसका जवाब। कुछ लोग उम्र भर मेरे हुए फिरते हैं और कुछ मौत का जायका चुकेती तो हैं मगर मरते नहीं हैं। कई बादशाहों ने तख्त छोड़कर फ़कीरी इख्तियार की मगर आज तक किसी फ़कीर ने बादशाही कबूल नहीं की। मेरा मालिक भी कितना मेहरबान और रहम करने वाला है, पहले दुआ कबूल करता है और फिर तौफीक दुआ देता है। कायनात का हर जर्रा कुन की गुलाम गर्दिशों में महव रक्स है। मेरी जान तुम्हारा घर से निकलना, फिर यहाँ तक पहुँचना, फिर इज्जत से निकाह होना, ये सब मामलात तय थे पहले से ही। मैं तो बस एक मोहरा हूँ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने वाली। क्या पता तुम्हारा मिलन भी किसी अपने से इसी तरह लिखा हो। निमल और ताबा एक टुक माँ को देखने लगे। नमाज पढ़ो, अल्लाह की अता पर राजी रहो ताकि कल वो तुम्हारी रजा पर भी राजी हो जाए। नरगिस ने राबा के सर पर हाथ रखा। अपनी कल की जिंदगी को सोचो, कहाँ थी कल तुम और आज कहाँ हो। कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा तुम्हारी साथ। राबा ने ना में सर हिलाया। तो मेरी जान अब फैसला करो, जिंदगी तुम्हारी कल की तरह हराम है। उसने फिर ना में सर हिलाया। अल्लाह ने अगर मेरा घर चना तुम जैसी मासूम सी बच्ची के लिए तो इसमें इसकी क्या मसलहत है ये हम नहीं जानते, लेकिन उम्मीद अच्छी रख सकते हैं ना। बदगुमानी के वसवसे पालोगी तो कभी खुश नहीं रह पागी। वो रो पड़ी। इनके जाने का वक्त करीब था। जाजुब ने सारा सामान उनका गाड़ी में रखा। राबा सबसे मिली, फिर जियान को गोद में लेकर खूब प्यार करने लगी। इज्द कमरे से बाहर आया। नरगिस इससे प्यार से मिली। मेरे बच्चे, तेरा बख्त तेरे साथ भेज रही हूं। बदबख्त ना समझ उसे। इसी के बख्त की बदौलत आज जाजुब मेरी बेटी, मेरा शौहर सब मेरे साथ है। इस बख्त को तो भी अपनी खुशबख्ती बना ले, सहल कर ले अपनी जिंदगी। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर सबसे मिलकर गाड़ी में बैठा और उनको अल्लाह हाफिज करता कराची के लिए रवाना हो गया। वहां जाते साथ राबा ने अकेले ही पूरा घर संभाल लिया, लेकिन इतने बड़े घर में राबा अकेली नहीं रह सकती थी। वो डरती बहुत थी कि घर काफी बड़ा था। इस भी इसकी वजह से फिक्रमंद था। राबा की तबीयत काफी खराब थी, उसे उल्टियां लग गए अचानक। इस घर में ही था। इसकी अकाइयों की आवाज सुनकर उसके कमरे में आया। क्या एवा है तुम्हें? कुछ नहीं, बस वैसे ही दिल पर बोझ सा था। सुबह से तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। क्या खाया था दिन में? कुछ नहीं। क्यों? दिल नहीं चाह रहा था, नहीं खाया। हम जाहिर है अपने शहर में हो जहां दिल लगाया था। पुरानी यादें सता रही होनेगी। ऐसी को बात नहीं। इज्द इंसा, तुम सारे जहां से झूठ बोल सकती हो, मुझसे नहीं। मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला है?
झूठ नहीं बल्कि यूं कहो कि मैंने आपसे सच कब बोला है। अगर इतनी ना एतबारी है तो ना लाते यहाँ। मैं नहीं लाया, तुम है जबरदस्ती हो मेरे साथ, मेरे पाहे पड़ के, और एतबार में तुम पर तो हरगिज नहीं कर सकता। मैंने आपको एतमाद में लेना जरूरी भी नहीं समझा कभी। वो फिर से वॉशरूम भागी, वॉमिट करके बाहर आई। चिल्लू ए विस्पटल, नहीं जाना मुझे, अब टैबलेट्स ला दें? मैं खा लूंगी। ऐसे कैसे ला दूं बगैर चेकअप के? क्यों, अब वॉमिट कली भी मेरा चेकअप होगा? नहीं जाना मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूं। वो इसके करीब आया। तुम एविस्पटल जाने से इतना डरती क्यों हो? मुझे इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है, असली नहीं जाती, और छोटी छोटी तकलीफ पर किया जाना चेकअप कली। कहीं को नया गिल तो नहीं खुला कर बैठी है? क्या मतलब? वो इज्जत को देखने लगी। मतलब वही है जो तुम समझना नहीं चाहती हो। लेकिन मेरी बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर इस घर से एक कदम भी तुमने बाहर निकाला या फिर जरा सी भी को गलत हरकत की तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। और इतना बच्चा नहीं हूं, मैं सब समझता हूं कि तुम यहाँ इस शहर में क्यों हो। और इस गुमा में मत रहना कि अब की बार तुम्हारी किसी गुनाह को कबूल करूंगा मैं। वो इज्जत की बातें सुनकर अपनी तकलीफ भूल गई। इतना घटिया समझते हैं आप मुझे? घटिया होने के साथ साथ बदकिरदार भी हो तुम। बस इज्जत इतनी तजलील मत करे मेरी। अभी तो मैंने की कहा है तुम्हारी तजलील। कानालिफिश में तुम जैसी गिलाजत के ढेर को निकाल फेंकता अपनी जिंदगी से। राबा ने हैरत से उसे देखा। मैं गिलाजत का ढेर हूं आपके लिए? हाँ, वो ढेर हो गिलाजत का जिसकी बदबू से मैं छुटकारा भी नहीं पा सकता। इज्जत को बेहद गुस्सा था इसकी हकीकत निमल की जबान से सुनकर। दूसरा इसके झूठ पर, तीसरा नरगिस के इसके साथ निकाह पर, और निमल की जाजुब के साथ प्यार भरी खुशहाल जिंदगी देखकर इसके मन में जिद और नफरत मज़ बढ़ थी। ताबाकली लंदन जाकर वो इससे इतना बदजन नहीं था जितना वो यहाँ आकर एवा था। बहुत जहर था उसके अंदर ताबाकली जो वो उगा रहा था। आज राबा की बर्दाश्त भी जवाब देगी। वो इज्जत के ताने न सह सकी तो गम व गुस्से से फट पड़ी। मैं थक हूं बहुत आपके ताने, आपके इल्जामात सुन सुनकर। कभी आप मुझ पर आशिकी का ताना कसते, कभी मेरी तबीयत की खराबी से लगता है कि आपको कि मैं यहाँ कराची किसी के साथ अपने पुराने किस्से दोहराने और नीगिल खुलाने हूँ। राबा की आवाज बुलंद होती, और बदबोदार किरदार की मालिक हूँ मैं। आपके लींदक का ढेर हूँ मैं। छुटकारा आप कर नहीं सकते, मैं ही जान छोड़ देती हूँ आपकी। वैसे भी मेरे जीने का मकसद सवा जलालत के और कुछ है ही नहीं। वो कमरे से बाहर भागते एवी निकली। गैलरी में पड़े जनरेटर के साथ से पेट्रोल उठाया और किचन में जाकर खुद को लॉक कर लिया। इज्जत भागता एवा आया इसके पीछे। खोलो दरवाजा, क्या कर रही हो? उसने पेट्रोल अपने ऊपर छिड़का और पागलों की तरह माचिस ढूंढने लगी। इज्जत को पेट्रोल की बदबू बाहर तक उसने धक्के से दरवाजे का लॉक तोड़ा। माचिस की तीली राबा के हाथ में थी। जारी है।